سے گھروں سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر آپ کی رائے بھی شامل کرتے ہیں۔ ہر پیر کے روز حسب معمول میرے ساتھ ساتھی میزبان ہیں آغا سید علی موسوی بھائی، ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم آغا بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعاگو بھی ہوں اور مطمئن بھی ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارے ناظرین جہاں کہیں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے، اس صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہاں پہ تو تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی اور اب حبس کا سماں ہے، جیسے ایسی پنجاب میں ہوتا تھا اکثر بارشوں میں جولائی اگست میں بہت زیادہ حبس، اور تھوڑا سا تو آپ سنائیں، ایک ہی شہر میں لیکن آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اس وقت؟ جی ہاں، بالکل حبس کا سماں ہے، اور یہ گزشتہ رات سے ویدر ایسے ہی ہے کہ کیونکہ کل اچھا ویدر تھا، ذرا دھوپ وغیرہ تھی، تو اس کے بعد سے ہی حبس ہے۔ اب یہ کہ ہو جی سکتا ہاں، ہے کہ بارش وغیرہ کا امکان ہو جاتا ہے فوراً۔ بارش کا بھی ہو۔ جی ہاں، اور یہاں پر وہی بات کہ بندہ سمجھتا ہے کہ گرمی آ گئی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر شام کو پھر دوبارہ سردی، تو یہ سلسلہ ہے بالکل ایسے ہی ویدر کے حوالے سے۔ ویسے بھی یہاں کی پیشن گوئیاں یا اس طرح بہت باتیں ہو چکی ہیں۔ ہے۔ تو آج آپ شروع کریں سر، آپ کے پاس کیا کیا ایشوز ہیں، اور اس کے بعد پھر میں بتاتا ہوں ناظرین کو کہ کن کن ایشوز پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس، اور بہت تیزی کے ساتھ چونکہ تبدیلیاں خطے کے اندر مستقل جو ہے وہ رونما ہو رہی ہیں، اور جس میں ابھی حالیہ جو واقعہ ابھی سامنے آیا ہے وہ ترکی کے لڑاکا طیاروں نے عراقی حدود کی دوبارہ سے خلاف ورزی کی ہے، اور چونکہ وہ کرد، ان کا جو ڈیموکریٹک الائنس ہے کردوں کا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ پرانی ایک پرابلم ہے، دونوں جو ہے وہ اطراف سے جنگیں جو ہے وہ جاری رہتی ہیں، جھڑپیں جاری رہتی ہیں۔ ترکی کے جو فائٹر پلین ایک بڑی تعداد میں، یعنی 31 F-16 طیاروں نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے عراق کی خلاف ورزی کی حدود کی، اور عراق کی اچھا، جو کردستان کا ایریا ہے اس میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ PKK کے جو وہ ٹھکانے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی ہے زبردست۔ ایک طرف ترکی یہاں پر ایک دوسرا محاذ کھولے ہوئے ہے، اس وقت ترکی 3 محاذوں میں اگر ہم دیکھیں تو الجھا ہوا ہے۔ لیبیا کے اندر پورے عرب اتحاد کا جو ہے وہ ایک زور آزمائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری وساری ہے۔ اس میں ایک گروپ جو ہے وہ پورا پرو سعودی ہے، دوسرا جو ہے وہ پرو ترکی ہے، یعنی اگر میں کہوں کہ وہ دوبارہ سے جو شام کے اندر اخوان اور سعودی الائنس مل کر بشار الاسد سے لڑ رہے تھے، یا میں کہوں کہ مقاومت کے پورے بلاک سے لڑ رہے تھے، تو لیبیا کے اندر یکسر صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے۔ وہاں پر جو 2 گروہ شام میں ایک ساتھ ہو کر لڑ رہے تھے وہ وہاں پر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک کی سربراہی جو ہے وہ قطر اور ترکی کر رہا ہے، اور دوسرے کی جو ہے وہ وہاں پر سعودی اتحاد کر رہا ہے۔ تو وہاں پر لیبیا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری عرب اقوام کے لیے، عرب جو ممالک ہیں ان کے لیے ایک طاقت کا وہاں پر جو ہے وہ ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر آپس میں نبرد آزمائی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو وہ مسل شو کر رہے ہیں اپنے۔ تو ایک محاذ جو ہے وہ ترکی نے وہاں پر کھولا ہوا ہے۔ وہاں پر بعض دفعہ خبریں بھی آتی ہیں عرب نیوز جو مختلف ایجنسیز ہیں اس سے، کہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو شام سے بار بار نکال کرتی ہے اور ان کو جو ہے وہ لیبیا منتقل کیا جاتا ہے۔ ایک محاذ یہاں پر ہے، یہاں بھی برادر کشی ہو رہی ہے، مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی جو ہے وہ صبح و شام قتل کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ پر جہاں ترکی انوالو ہے وہ شام کا محاذ ہے، جہاں پر ابھی کچھ ٹھکانے ترکی کی حدود کے ساتھ ان کے باقی ہیں، اور اگر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو سیدھا سیدھا گولان ہائٹ جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گی، جہاں پر کہ اسرائیل نے جو کہ شام کی پہاڑیوں کے اوپر کیا ہوا ہے وہ اگر آزاد ہو جاتی ہے تو اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو وہاں پر ترکی جو ہے وہ اسرائیل کو باقاعدہ ہیلپ کر رہا ہے، سامنے سے وہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی رہنمائی رہبری کریں گے، ایک نئے خلیفہ کے طور پر آٹومن امپائر کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، مگر حقیقت جو ہے، جو آن گراؤنڈ ساری سچویشن ہے، وہاں پر وہ باقاعدہ اسرائیل کو ہیلپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو ہے وہ سیاسی بھی، سماجی بھی، معاشی بھی، پورے ان کے بزنس کے سارے لین دین ہیں۔ اور تیسرا محاذ جو تھا وہ عراق کی سرحد کے ساتھ تھا، وہ انہوں نے ایک کردوں کے حساب سے کھولا ہے۔ اب نہیں پتا کہ آگے آنے والے دنوں میں اگر کرد مل جاتے ہیں پورے، چونکہ وہ ایک پورا عراق ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کردوں نے باقاعدہ کئی مرتبہ جو ہے وہ علیحدگی کی کوشش کی ہے، مگر جو ہے وہ ان سے ہو نہیں سکا، اور وہ دوبارہ سے پوری عراقی قوم کے ساتھ ایک عراقی اکائی کے اوپر جمع ہو گیا۔ اگر وہ عراق کی اکائی کے اوپر جمع ہوتے ہیں آڈیو کا اور مصر عراق بھائی کے آپ کا اندر تھوڑا جو کٹ کٹ کے آڈیو آنا ملیشیات ہیں شروع یا ہو گئی ہے۔ عراقی فورسز اس سے مدد کی اپیل کرتے ہیں، تو ترکی کے آتے یہاں پر جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں مقاومت کی طرف ہی تیز ہوگا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ کچھ
ऑडियो का मसला हुआ है और अच्छा, अब हो तस्वीर सकता आपकी है अभी फ्रीज ठीक हो हो रही है। जाए, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। सारा मामला है, कंटिन्यू करें जब तक। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा अगर उसको रिफ्रेश कर लें। और नाज़रीन, जैसे मुस्वी भाई ने बताया जो तुर्की, और खैर अपडेट ये भी थी, ईरानी वजीर खारजा जवाद शरीफ साहब भी तुर्की गए और उनके वहां पे क्या मुज़ाकरात हुए, इस पर भी थोड़ा अपडेट लेंगे। और इसके अलावा कुछ और इस दौरान हफ्ते में, ये क्योंकि जुमे के बाद पहली बार हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, तो एक अफसोसनाक खबर भी थी, मौलाना मुंतजर नकवी साहब की वफात हुई। और इन्ना उनके लिए लिल्लाहि व नाज़रीन इन्ना से इलैहि राजिऊन। गुजारिश जो है वो आप अदा कीजिएगा। बहुत पुराने और सीनियर एक ऐसे रहनुमा या ऐसे आलिम थे कि उन्होंने उस वक्त भी अपनी आवाज़ हक बुलंद किया जब बहुत मुश्किल था। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो इल्लाहि मुस्लिम आमीन। भाई, अब आप इसको कंप्लीट कर ले। और ईरानी वजीर खारजा जो जवाद शरीफ साहब भी तुर्की गए, वहां पर क्या जी हाँ, मुज़ाकरात हुए या जो जी दखल हाँ, जी अंदाजी हाँ, की गई इराक में? जी हाँ, वो इसीलिए गए हैं कि तुर्की अपना एक चेहरा, चूंकि अखवान का एक चेहरा हमेशा से, जैसे ही इनकलाब इस्लामी बर्पा हुआ है तो सबसे पहले अखवान ने उसकी हिमायत की थी। पाकिस्तान में अखवान की जो ज़ेली शाख है, जिसको हम जमात इस्लामी कहते हैं, उस वक्त सैयद अबुल आला अल मौदूदी पाकिस्तान में उसके हेड थे। उन्होंने सबसे पहले इनकलाब की हिमायत की थी, क्योंकि इनमें और सऊदियों में जो नज़रियाती तौर पर जो फ़र्क है, वो एक बुनियादी फ़र्क यह है कि ये जो है वो एक निज़ाम इस्लामी के हामी हैं, जबकि जो गल्फ वाले हैं वो एक बादशाहत के, एक मोनार्ची के हामी हैं। तो इनके अंदर बुनियादी फ़र्क ये है। बाकायदा अकायद के हिसाब से, फ़िक़ही एतबार से शायद जो है वो बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है, मगर जो नज़रियाती तौर पर इख्तिलाफ है, जिसकी वजह से अख़वान में और सऊदी ब्लॉक में कभी बनी नहीं है और एक दूसरे के लोगों को मारते रहे हैं, कैद करते रहे, वो बुनियादी फ़र्क यही है कि अख़वान का नज़रिया जो है वो एक रियासत इस्लामी पर जाके मुंतहिज होता है, जिसको सऊदी कभी भी पढ़ते हैं। तो जवाब ज़ही है, क्योंकि इरा जो है वो हमेशा इनके साथ रहा है शुरू से, जैसे मैंने अभी उसकी तारीख बताई थोड़ी-सी। तो वो जाकर इसके ऊपर बार-बार इनको बात करते हैं, समझाते हैं कि ये सारे मामलात हैं, नए कुछ मुआहदे होते हैं, माज़ी में भी होता रहा, तुर्की आगे आता रहा, शाम में पीछे हटता रहा, ये चलता रहा। ईरान के साथ कभी उसके ताल्लुकात मुनक़ता नहीं हुए हैं। एक मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुला रहता है और एक ऑन ग्राउंड वहाँ पर ईरानी जो नवाज़ मलेशियाज़ हैं, उनके साथ जो है वो जंग भी रहती है। ये सारे मामलात जो है वो ऑन एंड ऑफ जारी सारे रहते हैं। तो ये भी दौरा जो है यकीनी तौर पर जो है वो मकामत कुछ वहाँ से अचीव कर आएगी, कुछ उनको पीछे हटने पर मंजूर करेंगे। एक तो ये अपडेट थी, और दूसरी अपडेट जो है वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चाइना के खित्ते की है कि वहाँ मुसलसल हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कशीदगी हर गुजरने वाले लम्हे के साथ, हर गुजरने वाले दिन के साथ बढ़ रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। पूरी कोशिश अमेरिका की है कि वो सीपैक को रोके, किसी भी सूरत से रोके। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि आइंदा कुछ दिनों में जो चाइना का एक दूसरा हिस्सा है, वहां से मंगोलों के साथ बगावत कराई जाएगी, ताकि वहां से भी वन बेल्ट वन रूट जो है उसको रोका जाए। तो ये तमाम चीजें जो खत्ते में इंटरनेशनली जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, ये रिस्क बढ़ रहे हैं और बहुत सारी है, मगर वो अभी चूंकि अभी इतनी पॉपअप बाकायदा इतनी नहीं आई हैं, तो अभी उनको टाइम देंगे, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में उनको अपडेट करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जो कोरोना वायरस की जो इश्यूज हैं, और ख़ास तौर पे यूके से इसका आगाज़ करेंगे, क्योंकि आज 15 जून था, तो कुछ नई तब्दीलियां या थोड़ी बहुत जो छूट है वो दी गई, और बहुत से ऐसे नॉन एसेंशियल जो स्टोर्स थे या खरीदो फरोख्त के मराकज थे, उनको खोला गया है। और आज सुबह से ही हम यहाँ के चैनल्स पे देख रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और लोगों के लिए जो एसओपीज रखे गए या हुकूमत की तरफ से, तो वहां पर उनको भी लागू करवाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और अमूमन ये कहा जा रहा है कि एक कुंबे के अफराद उसमें, उनके लिए डिस्टेंस का कानून लागू नहीं होता। तो इसमें अब कौन पहचान सकता है कि ये कुंबे के लोग हैं या ये घर से बाहर के लोग हैं? तो लंबी लंबी लाइनें हैं। और अमवात का जो सिलसिला जो सैकड़ों में था, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर एक जान भी बहुत कीमती है, लेकिन उस वबा या उस अरूज को देखते हुए अब 30-35 के लगभग अमवात की इतलात हैं। तो अल्लाह करे इसमें मजीद कमी आए, और आहिस्ता आहिस्ता जो पिछले 3 महीने 23 मार्च के बाद से जो इलाही लॉकडाउन आमीन। था, अब उसमें जो लोगों ने कुर्बानी दी या जिस तरह से भी इकदाम किए गए, उसके समरात अब आहिस्ता आहिस्ता अवाम तक पहुंचे। और अब ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है सारी दुनिया के लिए भी,
کہ جہاں جہاں لاک ڈاؤن ایز کیا جا رہا ہے، اب دیکھنے کی بات ہے کہ اگلے 2-3 ہفتوں کے بعد اب یہ جو شرح ہے یا ریشو جو نئے مریضوں کی ہے وہ بڑھے گی یا کم ہوگی. تو اگر تو یہ بڑھی تو یہ بہت زیادہ ایک تشویشناک بات ہوگی، اور اگر یہ کم ہی رہی تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پھر عوام کو اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو یہ اب پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننا بہت لازمی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے بار جب خاص طور پہ لندن میٹرو میں تو بہت زیادہ بھیڑ بھی ہوتی ہے، تو اس قسم کی جو ایس او پیز کی دھجیاں اکھاڑ دی گئی تھی. تو اس پر اگر موسیٰ بھائی آپ بات کرنا چاہے، پھر پاکستان کی ایشوز بھی بات کریں گے کہ یہاں کا جو لاک ڈاؤن ہے کتنا ایک جو تھوڑی سی آسانی ہوئی. کچھ ایک دو شعبے رہ گئے خاص طور پہ ہیئر ڈریسنگ کے، اور جو ان کے اپنے جو اس قسم کے مشاغل کے جو جگہ ہیں وہ انہوں نے ابھی بند رکھی ہیں. ریسٹورنٹس پہ ابھی تک صرف ٹیک اوے کی سہولت ہے، وہاں پر آپ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. اور باقی جو تمام مارکیٹس ہیں انڈور آؤٹ ڈور، یہ کھولنے کا آج سے اس کا پہلا دن ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب کس طرف یہ معاملہ کچھ بہتر ہوگا؟ بالکل، دیکھیں یہ تمام عوام کے اوپر منحصر کرے گا کہ جس طرح سے حکومت نے یہاں پر ساتھ دیا، اور قابل تحسین ہے جس طرح سے انہوں نے ان تمام چیزوں کو سنبھالا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ فرلو بھی دیے گئے، لونز بھی دیے گئے، گھر بٹھا کے پیسے بھی دیے گئے. لاک ڈاؤن میں آپ جیسے کہ دیکھتے ہیں ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو پولیس کا رویہ لوگوں کے ساتھ رہا، جہاں پر بالکل کھانے کو محتاج تھے اور اس کے اوپر ان کے پاس سختی بھی کی گئی، یہاں پر اس کا بالکل برعکس دیکھنے میں آیا. لوگ جاگنگز کرتے رہے، لوگ گروسری کرتے رہے، لوگ باہر جاتے رہے. بہت ہی جینٹلی ایک لاک ڈاؤن کیا، اس کو ہینڈل کیا. اب باری حکومت نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی. اب میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی باری ہے کہ وہ اس کو دوسری سیکنڈ ویو آنے کو روکے، اس کو جنریٹ نہ ہونے دیں. جو گورنمنٹ ایس او پیز مقرر کر رہی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں، سوشل ڈسٹینس رکھیں. ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے، کم ہوا ہے، ابھی تمام نہیں ہوا ہے. جس دن جی ہاں، تمام ہوگا، جس دن پورے ملک سے ختم ہو جائے گا، تو پھر آپ آزادی کیونکہ کا اور ابھی سکون کا تو سانس جب لیں تک کہ ابھی ویکسین بھی آپ نہیں سمجھیں. آتی، جی ہاں، جب بالکل تک ویکسین نہیں آتی تو علاج اس کا نہیں دریافت ہوتا، تب تک تو یہ کنسرننگ چیز ہی رہے گی. اس کے لیے آپ احتیاط بھی کنسرننگ ضروری چیز ہے. ہے، جی کنسرننگ ہاں، چیز ہے. تو اب یہ باری جو ہے وہ یو کے عوام کی ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، وہ ماسک پہنیں، وہ باقاعدہ چیزوں کو چھونے کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کریں. جو کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو جو ہے وہ مالج بتا رہے ہیں، جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، جو گورنمنٹ ایس او پیز دے رہی ہیں، اس کے اوپر اگر ہم پوری طرح سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ سیکنڈ ویو نہیں آئے گی. اگر عمل نہ کیا تو خطرہ جو ہے وہ سر کے اوپر ہنوز منڈلا رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. تو ناظرین، ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے آ گئے، اور دو ٹوک سیگمنٹ ہے. کچھ ایشوز جو بین الاقوامی تھے، خاص طور پہ ترکی مشرق وسطی سے متعلق موسی بھائی نے بات کی. لاک ڈاؤن جو یو کے میں ہے اس وقت یہاں پر، کیونکہ یو کے اور انگلینڈ کے جو انفرادی طور پہ کچھ قوانین تھے، بورس جانسن کی کچھ اور اقدامات تھے، اسکاٹ لینڈ ویلز وغیرہ اس سے متفق نہیں تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سب تھوڑی سی آسانی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں کچھ اور سٹوریز شارٹلی شیئر کر دوں تاکہ جو بھی لوگ آئیں اس پر بھی وہ بات کر سکیں. اور موسی بھائی بھی کیونکہ 6:30 بجے جاتے ہیں تو ان سے بھی ہم ساری یہ رائے لے لیں گے. ایک جو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی، گو کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اتنا ہی بڑی کوئی اس میں اس طرح سے سفارتی کامیابی نہیں، لیکن پھر بھی داخلی طور پہ کم از کم ایک سینس ضرور پرویل ہوگا. پنجاب اسمبلی میں آپ نے سنا ہوگا سید حسن مرتضیٰ صاحب نے جنت البقیع میں پاک بی بی سلام اللہ علیہ کی روزہ مبارک کی دوبارہ سلام تعمیر کی علیہ قرارداد وسلم. پیش کی. آج سندھ اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی رکن سید فردوس شمیم نقوی صاحب نے بھی ایک قرارداد پیش کی ہے، اور اللہ کرے آہستہ سے یہ قومی اسمبلی یا دیگر صوبائی اسمبلی میں یہ معاملہ جائے تو اس پر بھی ناظرین آپ آ سکتے ہیں کہ کم از کم یہ معاملہ 8 سوال کے 8 سوال تک نہیں ہے. آہستہ آہستہ اس پر آواز بلند ہو رہی ہے، اور ہمارے سیاستدان جہاں بہت سے غلط کام پر ہم ان کی تنقید کرتے ہیں، تو ایسے ایشوز پہ جنہوں نے آواز اٹھائی تو قابل ستائش ہے. آج انڈیا پاکستان کے جو ہائی کمیشنز ہیں، چاہے نئی دلی میں ہو، اسلام آباد میں، وہ بھی خبروں کی زینت بنا رہا. بتایا گیا کہ انڈین ہائی کمیشن کے 2 ملازمین نے ایک پاکستانی شہری کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اسلام آباد میں. مقامی تھانے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی تو دلی سے پتا چلا کہ پاکستانی سفارت خانوں کو بھی محاصرہ اس کا کر لیا گیا ہے. تو یہ معاملہ اب کدھر جاتا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا چائنا ٹھیک ٹھاک جواب کیا دے رہا ہے، بلکہ وہ تو ماشاءاللہ سبق سکھا رہا ہے. تو اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو تھوڑی سی جو ایک ندامت ہے اس کو بٹانے کے لیے شاید اس قسم کے اقدامات ہوں.
और दूसरा, जॉर्ज फ्लाइड का भी मामला कम ही नहीं हुआ था, तो एक और एटलांटा में एक सियाह फाम जो शहरी थे, रेशर्ड ब्रुक्स जो हैं, वो पुलिस फायरिंग से हलाक हो गए। बताया गया एक टेकवे पे ड्राइव थ्रू में वो सो गए, उनका जो टेस्ट किया गया मंशियात का वो पॉजिटिव आया। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से पुलिस वालों ने दोबारा गोली चला दी, ये वाकई एक अफसोसनाक वाकया है। जब पहले से एक तहरीक चल रही है ब्लैक लाइव्स मैटर, और इतनी ज्यादा वहां पर पुलिस से लेदे हो रही है, तो इस किस्म के वाकयात का दोबारा होना ये अजीबोगरीब बात है। पाकिस्तान में जो असद उमर साहब के बयानात हैं, उस पर बात हुई है। जुलाई में उन्होंने कहा कि ये मरीज 12 लाख तक हो सकते हैं, और कुछ माहिरीन ये बता रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगस्त में 70-80 हजार के करीब अमवात भी होने का खदशा है। तो इस पर तफसीलन बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में, जब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अवाम ने बहुत मुश्किल से इस पर अमल किया, हुकूमत के पास सारे वसाइल के बावजूद कुछ भी बड़ी बड़ी हुकूमतें ताकतें जो हैं वो सरनगू हो गई, तो पाकिस्तान में अब क्या होगा जहां पर हमारे लीडरशिप में आपस में इख्तलाफात हैं। नैब ने सलमान शहबाज को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने का फैसला किया है। अब ये भी बहस की बात होगी कि इसहाक डार और अल्ताफ हुसैन को भी वो लाना चाहते थे। पंजाब की यूनिवर्सिटीज में कुरान को तर्जमे से पढ़ाना लाजमी करार दिया गया है। इसमें किस शख्सियत का तर्जमा पढ़ाया जाएगा, ये मुसीब भाई आपसे पूछेंगे, क्योंकि तर्जमे में तो सारे मसाइल हैं। इसके बाद फिर सिनेथिया रिची का जो मामला है, वो इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का हुक्म दिया है, और अब ये मामला मजीद आगे खुलेगा। जो उनके पास सबूत हैं वो देंगी, या खुद मुलजमा हैं तो फिर वो मुजरम साबित होंगी। शाह महमूद कुरैशी ने एक उम्मीद शाह को पेशकश की है कि आप हमें मौका दें, हम मकबूजा कश्मीर जाएं और वहां की आवाम से पूछ के 5 अगस्त का ये मामला आपने जो किया है वो ठीक किया या गलत किया, और आप इंडियन क़यादत अगर चाहे आजाद कश्मीर में आना तो वो उनसे राय ले सकती है। तो ये एक जबानी जो पॉइंट स्कोरिंग चल रही है अमित शाह और पाकिस्तान के कुछ लोगों की, वो उसी का एक आगे हिस्सा है। कल एक इंडियन अदाकार की खुदकुशी के बाद हमारे मीडिया पे भी जो डिप्रेशन है वो दोबारा ज़ेर बहस आ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो गुर्बत की वजूहात से कुछ लोग खुदकुशियां करते हैं, बल्कि माँ अपने बच्चों के साथ, वालदैन, इस किस्म की हमें इतलात आती है। लेकिन अगर एक खाता पीता इंसान जो है, मशहूर इंसान, वो इस नैच पे पहुंचता है तो वो जरूर कंसर्निंग है कि वो क्या वजूहात हैं कि हर बंदा वो अपनी जान लेने पे इतना बड़ा रिस्क क्यों ले सकता है, ये वो आमादा क्यों हो जाता है। तो ये कुछ चीजें थी इसमें आप जिस पर बात करना चाहें, और फिर कॉल्स भी हम, अगर आप इजाजत दें तो एक कॉलर आ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हुई जी, आप दोबारा आ सकते हैं। तो पहले मुसीब भाई मैं चाहूंगा कि ये जो जन्नतुल बकी के हवाले से जो अपडेट्स मिली हैं, करारदादें पेश की गई हैं, तो ये वाकई एक बहुत ही एक उस जगह पे, हालांकि बहुत बड़े इकदाम होने चाहिए, लेकिन वहां पे जो वहां पे ये इस किस्म के इश्यूज जो हैं वो उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता। उस माहौल में ये एक ताजा एक हवा का झोंका कह लें, या एक थोड़ी बेहतरी देख रहे हैं इसको। बिल्कुल, देखें जिस तरह से उन्होंने इसको एक अपना एक सऊदी मसला बना के पेश किया, हालांकि ये इस्लामी मसला था। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत तमाम मुसलमान, तमाम फ़रक़ा इस्लामिया के नज़दीक मोहतबर और मुस्तनिद है कि उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तमाम तर फ़िरक़े जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस्मत के, उनकी तहारत के, उनकी सच्चाई के, उनके गवाह हैं, उसके ऊपर वो अक़ीदा रखते हैं, इसके अंदर इख्तलाफ नहीं है। जो लोग इस तरह की गुस्ताखियां करते हैं, जो हाल ही में आपने देखी है तमाम चीजें, ये वो लोग हैं जो उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा नहीं है, जिनको आम तौर से हम इसको खवारिज से ताबीर करते हैं या उनको नासिबी कहते हैं। एक आम मुसलमान, मैं तमाम फिरकों से बालातर होकर इसके ऊपर बात करूंगा कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत तमाम के नजदीक काबिल एहतराम है, तमाम ही उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने, सऊदियों ने गिरा के जो है वो इसका अपना एक दाखिली मसला करार दिया था। ये जो करारदाद पेश हो रही है, ये पाकिस्तान में पेश हो रही है, कोई सऊदी प्रोविंस में पेश नहीं हो रही, मगर ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक बेदारी का पैगाम दे रही है। हमें मसला है, इसको जिंदा किया जो सालों से, अशरों शवाल के अंदर तहरीक चला रहे हैं, मातम कर रहे हैं, साल बर्बाद भी करते हैं,
باقاعدہ پوری دنیا کے اندر سعودی شہریوں کے سامنے احتجاج بھی ریکارڈ کراتے ہیں. اب تو میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اب تو چیزیں ریکارڈڈ نہیں کی ہیں, مگر نشروں سے چل رہا ہے. جب میڈیا کا تصور نہیں تھا, جب سوشل میڈیا نہیں تھا, جب بھی جناب زہرا سلام اللہ کا جب سے روزہ گرایا گیا, ہم اس کے بعد سے احتجاج کر رہے ہیں. مگر یہ پنجاب اسمبلی میں اور سندھ اسمبلی میں قرارداد پاس ہونے کا یہ بہت اچھا سائن ہے. اس سے پوری امت مسلمہ کے اندر ایک تحریک جنم لے سکتی ہے, لوگوں کی آنکھیں کھل سکتی ہیں کہ یہ معاملہ امت مسلمہ کا ہے, اس کا تعلق صرف سعودی حکومت یا ان کے خاص نظریات سے نہیں ہے. بہت خوش آئندہ چیز ہے یہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اس کو مزید پھر اب اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور جو ہماری شیعہ مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تو مزید اس پہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جب اس طرح سے آغاز ہو چکا تو اس کو کہیں پچھلے بیک پیج پہ جانے نہیں دینا. تو کس طرح قومی اسمبلی میں یہ معاملہ آئے, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جن کا خود کا عقیدہ جو ہے کافی عقیدت وہاں رکھتے ہیں, ایون مدینہ جب جائیں تو وہ جوتا نہیں پہنتے, ان کے جو اس وقت موجودہ وائف ہیں وہ پاک پتن جائیں تو وہ کئی میل پیدل چل کے وہاں پر جا کے حاضری دیتی ہیں. تو ایسے میں قرارداد کا آنا, اور جیسے آپ نے فرمایا یہ کوئی داخلی مسئلہ نہیں ہے سعودی عرب کا, یہ پورے مسلمانوں کی ایک عقیدت, احترام اور دین کے عقیدے کا مسئلہ ہے. تو اس پر ضرور آواز ضرور اٹھانا چاہیے. کالز کا ناظرین آغاز کرتے ہیں. جی جی جی, آپ کا پوائنٹ. جی وعلیکم السلام, مہربانی. وعلیکم السلام. سننے والوں کو بھی بہت اچھا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ہمیشہ اہل بیت ٹی وی کا, اور یہ جو آپ لے کے آتے ہیں ٹاپک سب سے بہترین ہوتے ہیں. اور یہ ٹاپک تو جو پہلا آپ نے پوائنٹ رکھا ہے یہ تو سب پوائنٹوں سے بہتر ہے اور صحیح ہے, کیونکہ میں تو وہاں پہ رہا ہوں, 10 سال رہا ہوں مڈل ایسٹ میں, 5 سال دبئی سعودی میں, 5 سال سعودی عربیہ میں. تو میں نے یہ سچویشن دیکھی. یہ تو جوتے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں, اور نمازوں میں نے دیکھا مسجدوں میں, تو میں نے اسے سوال کر دیا کیونکہ آرمی کے ساتھ ہم کمیونیکیشن کا نظام سارا سعودی کا. تو میں نے کہا کہ آپ نے شوز پہنے ہوئے ہیں, کہتا آنا حرس کہ میں فوجی ہوں. ٹھیک ہے بھائی کوئی جنگ لگی ہوئی ہے, فوج کو تو جنگ کے دوران ہوتا ہے کہ چلو جوتے نہ اتاریں. یہ گھوڑوں پہ بھی نمازیں پڑھی گئی ہیں. تو وہ یہ جوتے جو ہوتے ہیں بوٹ باندھے ہوتے ہیں تسموں سے فوجی نے, تو یہ وہ شروع کے ساتھ ہی آ جاتے تھے گھروں پر. تو میں نے کئی مسجدوں میں, تو مجھے ہر شہر میں رہنے کی توفیق ملی ہے. تو یہاں تک کہ انہوں نے یہ جو الماریوں میں ہم رکھے تھے نا قرآن کریم میں, یہاں پہ بھی جوتے رکھے ہوتے ہیں اوپر. میں نے کئی دفعہ میں اتارا, الائن ابو ظبی میں تھا تو مسجد جمعہ کے گئے تو وہاں پہ جوتے اوپر پڑے, کتابیں قرآن کریم نیچے الماریوں میں اتار کے رکھا نیچے. تو یہ تو اونچی جگہ پہ قرآن کریم ہوتا ہے. یہ تو ظاہر ہے پھر وہ ان کے سامنے اس قسم کے لڑائی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ایک شعر سے اپنا شروع کرتا ہوں. پاکستان کی جو جنازہ نکال رہے ہیں مزید رہتا ہوا ہمارے سیاستدان, میرے پاس رہتے ہوئے میرا حال تک نہ پوچھا, میں کیسے مان جاؤں تم دور جا کر روئے. آج خواجہ آصف کی میں اسمبلی میں سن رہا تھا, اتنی لچھے دار تقریر. ارے تم بھی تو اسی ملک میں رہتے ہو, یہاں سے ہی کھاتے گئے ہو پہلے ڈکار مار کے, تمہاری پوری ٹیم جتنی تھی اس وقت یہ باتیں نا تمہیں یاد آئی جو آج آ رہی ہیں. اور جو ادارہ پورا ملک کرپشن میں ڈبو دیا, کس سے آپ ابتدا شروع کر لیں. بحری جہازوں سے, وہ جو غوری تھا وہ آپ نظر ہی نہیں آ رہا. ایم کا ہوتا تھا جہازوں کا, وہاں سے شروع ہو جائے. پھر 19,000 ایکڑ زمین والی اسٹیل مل سے روس نے لگائی تھی, اور بھٹو صاحب نے کام اچھے کیے, لیکن بھٹو کے نام پر جو کھایا جا رہا ہے انہوں نے نہیں کیا. وہ بھی کہا کہ اب ریلوے کی طرف آ جائے, پی آئی ادھر سے شروع, ایک طرف سے پورے ملک کے اینڈ ادھر تک آئے فاٹا تک. اب فاٹا کو جو انہوں نے سدھارا ہے, صحیح کیا ہے, کتنی محنت کتنی جانیں دینا پڑی, اسٹرگل کرنی پڑی, اور اب لیا ہے. تو اب بھی وہاں سے پتہ نہیں وہ کیا ایک نظیر کے اپنا اڑتے ہیں دو, وہ اسمبلی میں وہ بھی مخالفت میں, اور اس کو پیپل پارٹی سپورٹ کرتی ہے ووٹ بڑھانے کے لیے کہ اسمبلی میں ہماری تعداد بڑھ جائے. جائز نجائز جو بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ ان سے پوچھنا یہ چاہیے کہ آپ وہ کہاں چھپ گئے ہیں. کبھی زرداری کا یا ان کی جو بہن ہے جس کے اوپر اتنے کیس ہیں وہ کبھی نہیں چلے. عزیر بلوچ کا یہ سارے اب آئیں گے, اب کیس نزدیک لگے ہوئے ہیں. اور ایم کے جو الطاف بھائی نے اس کا صدر کے لیے نام پیش کیا, تو اس سے پہلے ایک سرٹیفکیٹ آیا تھا امریکہ سے بنا کہ مجھے پتا نہیں میری بیوی اور میرے بیٹے کہاں, بچے کہاں ہیں. یہ زرداری صاحب پاگل کا سرٹیفکیٹ تھا.
अगर ऐसे बंदे सर्टिफिकेट के बाद उनको जो चूज करते हैं, ये मुजरम वो ज्यादा बड़े हैं। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया है सर। लेके आके अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और ये जो पेट्रोल पंप है, चीनी की मिलें हैं, ये सारी इन लोगों के बड़े बड़े जो इन पार्टियों में थे, MLA MP। और जब भी कोई वो सही कहता है इमरान खान ये माफिया है, और जहांगीर ने मिलकर चीनी वालों के साथ, आटे वालों के साथ मिलकर सब मजा नहीं पहना, इन्होंने सब कुछ ये मिलके किया। चले अब इमरान खान अकेला क्या करे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत मेहरबानी। जैसे आपने बताया ना कि ख्वाजा आसिफ साहब को बहुत सी चीजें याद आ गई। हमारे सियासतदान यकीनन वो जब इक्तदार में होते हैं और इमरान खान साहब और उनकी टीम को बहुत सी चीजें भूल गई हैं, हम उनको याद कर, इनको जब याद आ गई हैं तो उनको भूल गई हैं जो वो कहते थे कि मैं साथ दूंगा स्टील मिल के वर्कर्स से। तो एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया, मैं शफीक बोल रहा हूँ। मैं जी शफीक के बारे में बात करेगा। मोर्ची के लोगों की जी किया, मैं जो मोर्ची के लोगों की है, फजल का टाइम हो गया, फजल का टाइम नमाज हो गया। मस्जिद की मैं अंदर किया, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने के लिए मैं इरादा किया, दूसरा आदमी आया, मेरा नमाज पूरा किया, मुझे धक्का दिया, कोई बात नहीं किया, मैं नमाज टूट गया। वो आदमी चले गया, मैं दोबारा नियोग कर 2 रकात नमाज पढ़कर मैं बाहर आ रहा है, तो उधर कोई ने उसको नहीं पूछा तुम बंगाली और पाकिस्तानी, में उर्दू बात किया, उर्दू बात कर मैं जो बाहर हो रहा है मस्जिद नबवी से, मैं लेफ्ट फुट से मैं लाभ किया, लाभ देखो बाहर आया, मैं जूते में गया, मेरा जूता का ऊपर अब अभी पहाड़ इतना। सही है। यानी इस किस्म के वाकई रवैये आपसे क्या बहुत से लोगों से होते रहे हैं। तो मुसी भाई क्या कहेंगे सर, जो हमारे यहाँ जो सिलसिला है लॉकडाउन के हवाले से, और इतनी बड़ी अब आजकल में जो मैं फोन पे बात करूं अपने अजीजों से, दोस्तों से, कहीं जाके थोड़ा सा 0.1% थोड़ा सा कंसर्निंग वो उनको लगा है, क्योंकि पहले हम 2-3 महीने लगे रहे हैं तो वो कहते हो छो जी एवं ही झूठ बोल दो, या कोई ऐसी बात नहीं है, ये एवं ही अमेरिका की साजिश है, या ये है वो है। अब थोड़ा सा वो, अब जब बड़े बड़े अदाकार हो, MNA MPA उनके डॉक्टर सारा, तो अब थोड़ा सा उनकी जो है थोड़े सा ठटके जरूर हैं। तो क्या देख रहे हैं भाई, कुछ हम मजाज तो बहुत ऐसे उलट ही है, तो आपको लग रहा है कि ये थोड़ी हम खुद भी एहतियात कर लेंगे, सारा कुछ हुकूमतों पे ना छोड़ दें? बिल्कुल सही फारूक भाई, अपनी पिछली बात को थोड़ा सा मुकम्मल करके मैं आपके इस पॉइंट के ऊपर आता हूं। जो जिस करारदाद की बात हो रही थी उस पर सिर्फ उसके ज़िम्न में मैं चंद जुमले कहना चाहूंगा कि इसमें अब ना शिया जमातों के किरदार की ज्यादा कोई खास जरूरत नजर आती है, ना ज्यादा कोई उसकी, क्योंकि एक एहतजाज तो हो ही रहा है हमेशा 8 शवाल को। मैं इसमें जो देख रहा हूँ चीज वो बड़ी, आप इसके ऊपर जरा सा मेरे नाजरीन भी मेरे साथ गौर करें कि इस ये मामला हुआ है, इससे पूरी दुनिया के अंदर जो ये आलमगीर होने जा रहा है मामला, तमाम अक़वाम, मुसलमान अक़वाम के अंदर जो उनकी आंखें खुलने जा रही हैं, ये मामला खुद जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की मजलूमियत लेके जाएगी इसको। और उसके पीछे जो ताकत है ना, उसके पीछे जो एक जबरदस्त अजीम इलाही ताकत है, ये वो मजलूमियत लेकर इसको आगे जाएगी, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह इनकलाब इस्लामी का गला घोटने के लिए क्या कुछ जतन नहीं किए गए कि उसको ईरान के अंदर रोक, मगर वो इधर क्या, वो ईरान की फैलान के पूरी दुनिया में आलमगीर हो गया। तो जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की मजलूमियत खुद इस गिर करेगी, और ये हो जाना जैसे कम नहीं है कि पाकिस्तान की असेंबली में, कौमी असेंबली में जाए ना जाए तो हमें बड़ी, मगर ये तमाम मुसलमानों के लिए उनकी आंखें खोलने के लिए बहुत है कि ये मामला तुम्हारा है, ये सऊदियों का नहीं है, ये आलम इस्लाम का मामला है। ये प्रेशर खुद बिल्ड होगा और इसको जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की मजलूमियत लेके आगे बढ़ेगी। अब आपके दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक कॉल ले लूं मुझसे भाई, बिस्मिल्लाह, एक कॉल ले लूं उसके बाद। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव आ चुके हैं। कौन कहां से हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। सर जी, हमें 20 साल 10 साल हो गए, हम कहते रहे कि वॉल्यूम कम करें, तो वो वॉल्यूम कम नहीं हुआ, टीवी की आवाज आहिस्ता नहीं हुई। तो आप ये स्मार्ट लॉकडाउन और डिस्टेंस और ये सोशल, ये क्या, ये हम कैसे करेंगे? यही ज्यादा सरदर्दी हमें। जी जी मुसी भाई।
जनाब आपको ये सारी जी देखिए ये अवेयरनेस की जब हम इससे पहले भी रहे थे कि खुदा न खास्ता ये फैल गया क्योंकि ये इंतहाई कंटेजियस है, ये फैल गया अगर अमवात होनी शुरू हो जाएंगी तो ये तो सबके सामने है। वो थ्योरीज अलग कि किसने बनाया, इंसान ने बनाया कि खुदा की तरफ से बन के आया सही कैपिटल पनिशमेंट है या किसी की शरारत है। जब तक थ्योरियों की बातें थी, थ्योरीज थी तो बात थी। आप लोगों की अमवात ऑन ग्राउंड हो रही है। आपके अपने जानने वालों में, हमारे जानने वालों में, दोस्तों में, अजीजों में, अकारिब में, मोहल्लेदारों में पुराने, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इसके अंदर जो है वो बीमार है। तो अब इसका इनकार किया जाना नामुमकिन है। अभी भी जो इनकार करता है तो ये वो लोग हैं जो जिनका इलाज जो है वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि बेवकूफी का इलाज किसी बिल्कुल के पास नहीं है। तो बिल्कुल अब सही। और मैं सबसे समझता हूँ बड़ी हुज्जत अहम तमाम हो जो, चुकी है। जी हाँ, और मैसेज जो जाना चाहिए तमाम अवाम जो हमारे बहन भाई, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी इशू हो उससे हम लाताल्लुक नहीं है, और खुदा ना खास्ता अगर वहां पे ये मामला बढ़ गया तो अब भी इसको सीरियस लें और अस्पतालों पे ना जाएं, या ये ना समझें कि हम किसी दवा से इसका इलाज हो जाएगा, ये कोई सहूलत हमें मिलेगी। क्योंकि अब जो भी मरीज वहां पे, और जैसे आप प्रोग्राम से पहले बता रहे थे, कोई जो भी मुखैर हजरात हैं जो फिर भी जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो दिखा रहे कि भाई 5-7 दिन रहने का 17 लाख बिल आ गया है, या एक एक रात का वहां पे इतना ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, और कोई सहूलत ऑक्सीजन जो है, सिलेंडर जो है वो तक नहीं है वहां पे। तो ये पहले यही है कि एहतियात करें, इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट ही रखें, छोटी मोटी बूस्ट बीमारियों करें। से भी अपने आप को बचाएं, ताकि आपको जैसे लगे कि आपका गला खराब हो जाता है फला चीज खाने से, या ज्यादा काम करने से बुखार हो जाता है, तो आप जो रवायती जो आपका एक सिलसिला था उसको भी महफूज रखें, ताकि आपके जो अंदर फौजी हैं वो कोरोना से लड़ने के बिल्कुल वो काबिल हो। ताज़ा आप दम छोटे रहे। मोटे, हाँ, छोटे मोटे फड्डे ना लें, कोई छोटे मोटे जकाम ना पालें, छोटी मोटी बेहतियातियों से ये अपने फौजी जाया बचे ना अपने करें, लोग। आप फौजियों को लड़ाएं। वो उस बड़े लड़ाएं। जो एक इस वबा है। मैं एक कॉल ले लूं सर। अस्सलाम वबा है वालेकुम। पर अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई जी। तो जी जारी रखें जी मौसी भाई। फारूक भाई सिर्फ सिर्फ 10-10 लाख रुपए की बात नहीं हो रही, बात ये भी है, और मैंने इसको टीवी के ऊपर भी लेकर आया था अपने गुज़िश्ता शोज के अंदर के एडमिशन 10 लाख रुपए तो ले ही रहे हैं, यानी यौमिया 1.5 लाख रुपए कोई जो है वो कोई 1,15,000 1,25,000 लाख खर्च हो रहा है। वो के अंदर एक काम और हो रहा है, अस्पतालों में जगह थी तो उन्होंने पोश एरियाज में बैंगलोज रेंट किए हुए हैं, उनको कोरोना सेंटर बनाया हुआ है, एडमिशन ऑफिस हॉस्पिटल में करते हैं, पेशेंट को एम्बुलेंस में लिटा के बंगले में शिफ्ट कर दिया जाता है, और वहां से शिकायत आ रही है कि भाई 10-10 लाख रुपए देकर यहाँ सहूलियत भी नहीं मिल रही। हमने तो सोचा था कि एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक निगहदाश्त हो जाएगी, पैसा चला जाए, जान बच जाए, मगर वहां पर यह भी नहीं हो रहा। वो अस्पताल का एनवायरनमेंट ही नहीं है, वहां पर लोगों को एक साथ बंद कर दिया है कि आप 14 दिन गुजारे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उस हिसाब से जो जो एक हॉस्पिटल के अंदर एक फैसिलिटीज होती हैं, मुख्तलिफ शोबे होते हैं, अगर हालत बिगड़ती जाती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बढ़ता चला जाता है, वहां वो सहूलियात नहीं है, पैसे में कमी नहीं लिखी है, बस वो सहूलियात भी नहीं दी जा रही, यानी इतना जुल्म अवाम के साथ हो रहा है, इतना बिल्कुल जुल्म सही। अवाम के एक साथ हो रहा कॉलर है जो हमारे कि साथ। नाकाबिले बयान है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन कहाँ से हमारे साथ? जी मैं बात कर रहा हूँ लंदन से, मोहम्मद हसनैन मेरा नाम है। जी हसनैन साहब। और जो आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जी। और आप बात करें पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं जी। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं और लोगों को बहुत जरूरी है कि एहतियात करें, इसलिए वहाँ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते इस सही बात। चीज को। जो मेरे दोस्त हैं वो वहाँ लाहौर में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको एक एक इंजेक्शन जो इस वक्त 65,000 का है और 2 लाख का इंजेक्शन वो बिक रहा है वहाँ पे ब्लैक। जनाब तो उससे मेरी समझ नहीं आता कि लोग इसको सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं। इसलिए कि लोग वहाँ पे इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और अली मूसवी जो ये बात कर रहे हैं, अली मूसवी मैं खुद रिजविया सोसाइटी से हूँ, अली भी रिजविया से हैं और इनके भी प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, मैं अक्सर इनको फॉलो भी करता हूँ। इनकी जो प्रोग्राम में जो बातें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं।
تو بس اسی حوالے سے یہ پروگرام آپ بہت اچھا اویئرنیس کے لیے کر رہے ہیں، بہت اور میں دیکھ رہا ہوں شکریہ. کیا نام ہے آپ کا بھائی کا؟ محمد حسنین. محمد حسنین. اچھا محمد حسنین بھائی. محمد حسنین بھائی صحیح سمجھ گیا، پہچان لیا. جی بہت شکریہ حسنین بہت بھائی، شکریہ جزاک سر. اللہ. آپ کی آواز تو وہ سن رہے موسی بھائی، لیکن کیونکہ ریسیور میرے پاس ہے تو موسی بھائی کی آواز آپ تک نہیں پہنچی ہوگی. آپ ٹی وی سے وہ آپ کو پہچان گئے تو آپ سن سکتے ہیں. تو اویئرنیس اور اس قسم کی جو ڈاکٹرز تو ہمارے کب کے کہہ رہے ہیں بھائی کہ یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا یہ ہلکا لاک ڈاؤن، بھاری لاک ڈاؤن، شہری لاک ڈاؤن، گاؤں کا لاک ڈاؤن، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کھیل میں نہ لگے رہے اور ہاتھ سے یہ معاملہ سارا نکل جائے. کیونکہ پرانے بیانات ہم دیکھیں ہمارے حکمرانوں کے، وہ بھی ایک عجیب و غریب، ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خیر ابھی تک تو یہ بڑے بڑے ماہرین کو یہ بیماری سمجھ نہیں آئی، لیکن تھوڑا سا ضرور عقل کے فیصلے کرنے چاہیے تھی. اور اب بھی اگر یہ بالکل کریں ایسے ہی ہے. تو اس قسم کی اموات سے ہم بچ سکتے ہیں. کال لے کے پھر حکومت کے کیا اس پر اقدامات ہونے چاہیے تھے، اس پر آپ کی رائے شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین منڈی باؤل سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. جی مہربانی. وعلیکم السلام صابر صاحب. منڈی باولدین میں کرونا وائرس سب ٹھیک ٹھاک ہو؟ کا شکر ہے. کرونا بھائی ہمارے تو پنجاب، لالا موسا، گجرات، جو باہر آدمی جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتے کرونا ہے یا نہیں ہے. اگر کرونے کا احترام کروں تو ٹھیک ہے. احترام کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، پنجاب اسمبلی میں جناب بی بی بتوں کے لیے دعا مانگی ہے اور قرارداد پیش کی ہے کہ بی بی بتوں کا روزہ بن جائے اور جنتی کو مرمت کیا جائے. میں سب کو دعا دے رہا ہوں کہ اس طرح قوم اسمبلی بھی التجا کرے کہ پاک رسول اللہ پاک فرماتا ہے اے رسول تیرے پیدا نہ کر دے کوئی چیز پیدا نہ کر دے. اللہ پاک نے فرمایا اس کل نبیوں میں سردار ہے رسول پاک نے دین علی نو دیتا ہے تو دین علی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسین علیہ السلام نو دیتا ہے. موبائل کی سرکار بھی اگر موبائل نہ جاندی تو کتنے بھی فرق فاقہ ہوں گے. پاک بھی رسول کی تحریر واسطے زیادہ نہیں ملتی کہ بن جائے. واہ جی واہ صابر صاحب، بڑی مہربانی سر. اللہ پاک شرم کرنا روزہ بن جان گے دنیا کے سواد ہی نہیں صحیح اندروں کفر نہیں جانتے. بالکل فائدہ ہوئے نا. میں پانچ مارا پنچنی مار لگا ذرا جی پانچ مارا پنچنی لکھ مارا یا علی یا علی. جی صاحب ماشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں موسی بھائی، ان کے جذبات جنت البقیع سے متعلق بھی آگے، قانون کے احترام سے متعلق بھی. حکومتی اقدامات کیا آپ نے دیکھا جی 2-3 مہینوں سے؟ کیا بصیرت، کیا سوچ، کیا ان کی لیڈرشپ نے آپ کو متاثر کیا کہ نہیں؟ بڑا سخت سوال ہے فاروق بھائی. بڑا اس کے اندر بڑا دکھ ہے، اس کے اندر بڑا درد بھرا ہوا ہے. جن لوگوں کے پیارے بچھڑ گئے ان کی سب کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے، ان سے پوچھا جائے تو وہ اپنا دکھ دکھائیں گے جو سینے ان کے دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں. پوری دنیا ایک طرف رہی فاروق بھائی اور ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں ایک طرف رہی.
इन्होंने इसको भी जो इसके अंदर एक कौम बन के नहीं आए, ना हिंदुस्तानी एक कौम बन के सामने आए अपने लोगों के लिए, ना पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी एक नहज के ऊपर आई, एक प्लेटफॉर्म पे आई। इसके अंदर भी सियासत होती रही, वहां तबलीगी जमातों पे डालते रहे, मुसलमानों को मारते रहे कि जी ये तबलीगियों ने फैला दिया। निपटना कैसे इसके ऊपर नहीं, कि कुछ करना नहीं है इसलिए अपनी चीजों को छुपाने के लिए दूसरों को मारो। यही पाकिस्तान में हुआ कि जनाब अली इससे पैसा कैसे आएगा, वो पैसा आया और वो कब रातों रात बांट दिया गया, लोग हनूज भूखे के भूखे रहे, एनजीओस काम करती रही, पॉलिसी कुछ नहीं। हुकूमत ने शुरू में बात की कि जो बड़े बड़े एक्सपो सेंटर्स को जो है वो क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है, नजर कुछ नहीं आया। होता ये कि लोगों को फुटेज आपने देखी, मैं आपने एक्सपो सेंटर की बात की तो कल मैंने वो फुटेज देखी फेसबुक पे, क्रिकेट खेल रहे हैं वहां बीच में, क्रिकेट खेल रहे हैं। जी वो होना ही है ना, होना यही था ना, होना ये था। जब आप उसको निगहदाश्त नहीं करेंगे, उसको वही हशर कर देंगे, उसका जो गवर्नमेंट स्कूल्स का हशर है आपका वही हशर कर देंगे, उसका जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हशर है। जब वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब वहां पर अमला नहीं होगा, स्टाफ नहीं होगा, तो क्रिकेट ही खेलेंगे ना, अंदर क्या करेंगे? कब तक वो अपने बिस्तरों पर बैठे रहेंगे और एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे? होना ये था। हम उम्मीद कर रहे थे कि हुकूमत क्या करेगी, बड़े बड़े सेंटर्स बनाएगी, जिन लोगों को कोरोना जो है वो पॉजिटिव आएगा उनको उनकी फैमिली को टेस्ट करके उसमें से जो लोग मुतासिर होंगे उनको ले जाके अंदर आइसोलेट कर देंगे, माशरे में कम से कम फैलेगा। कुछ नहीं हुआ, बल्कि अलमिया यह है कि एक शख्स का एक टेस्ट एक जगह से पॉजिटिव आता है, उसी शख्स का दूसरी जगह से नेगेटिव आता है। अब क्या वो इन दोनों टेस्टों को सामने रख कर क्या इस्तिखारा कराएगा इसमें से कौन सा सही है? मतलब कोई किसी नहज पर हम एक जगह पे नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है इसके हम खड़े हो हैं, क्या करें बताएं? सुकून हो, फिक्रमंद हो, करे क्या? मैं कॉल ले लूं फिर इस पर बात जारी है नाज़रीन। और जो पाकिस्तान में हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी जरूर बताएं आप इसको कितना सीरियस देख रहे हैं। मजीद अगर आप यहाँ से कोई ऐसी राय लेना चाहते हैं ना, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि तुसी ये कर दो वो कर दो वो कर दो और हाँ ये सब कुछ कर लिया, तो एक दूसरे के साथ हम टोटके शेयर करते हैं। तो हमसे अगर आप कुछ शेयर करवाना चाहते हैं, क्योंकि यूके में हम उस फेज से गुजर चुके हैं, तो अगर आप कोई राय लें या बताना चाहें तो जरूर हमें बताइएगा। ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं आपका भाई नवाज भट्ट जी नवाज भट्ट साहब, फ्रांस से आप हमारे साथ शामिल। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले पूछिएगा कि फ्रांस की क्या हालत है? जी हाँ, अब तो फ्रांस माशाल्लाह बता गया, वो आज वो आपके सदर साहब बता रहे थे सब कुछ खोल दिया उन्होंने, यानी कल शाम बजे शाम को रात को उन्होंने कल शाम से बता दिया कि डाउन हो गया है, ब्रेक डाउन, वाजिब सब कुछ लॉकडाउन। और उसके बाद सब एक्टिविटी शुरू हुई हैं, बच्चा रह गई हैं, क्योंकि बच्चे भी स्कूलों में चले गए हैं, कॉलेजेस में। ठीक है। और इसी तरह मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन की वजह से सब कुछ हुआ है। सही बात। आज एक नहीं अल्लाह को प्यारा हुआ, एक आदमी माशाल्लाह माशाल्लाह। 35 थे yesterday, I mean। जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या मैसेज देंगे भट्ट साहब हमारे जो अजीजों कारब वहाँ पे देख रहे हैं? ये कब तक कुछ शऊर आएगा? मैं तो गिले करता रहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट आज करूंगा जी कि सबसे पहले अपने हमारे भाई हैं अगर साहब, उनकी खिदमत में और आपकी खिदमत में और नाज़रीन मुहतरम की खिदमत में, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो फरूक भाई, कोरोना वायरस की कुदरती हुआ के खौफ से पूरी दुनिया डर रही है, घबरा रही है, मौत सर पे खड़ी है। बिलखसूस वतन अजीज में कोरोना वायरस को मजाक समझकर तदाबीर को नजरअंदाज किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है। और बिल्कुल उसी तरह, यकीन जानिए, बिल्कुल उसी तरह हमारे साथ ही बॉर्डर के इटली है, जिस तरह इटली के अवाम ने मजाक समझकर कोरोना वायरस को इग्नोर किया था और फिर लाखों के हिसाब से हलाक हुए थे। इट इज एवरीबॉडी नो। खुदारा कोरोना वायरस को मत मजाक समझें। जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट आपको तदाबीर बताता है उस पर अमल कीजिएगा। बाशऊर अवाम मास्क का इस्तेमाल करें, सफाई का खास ख्याल रखें, खुद साथ पीरों और नाम नहाद डॉक्टर जो बने हुए हैं, वे फेसबुक पे आते हैं, नाम नहाद डॉक्टर और नीम हकीम खतरा जान के फरसुदा टोटकों से इस किस्म से बचे। हर सकरात और सकरात अल्लाह ताला की किताबें हैं। सही है। इंसानों पर रहम कीजिएगा, अल्लाह आप पर रहम करेगा। आखिर में जब आप दूसरों की बेहतरी के लिए कुछ सोचेंगे, खुदा ताला आपके लिए बहुत सहूलतें मुहैया करेगा। ये हमारा ईमान मुसलमानों का। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। जी मुसीफ भाई, हुकूमत के जो जाहिर ऐसे इकदाम हैं,
उससे तो कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ वो टाइगर फोर्स की और पीपल्स फोर्स की इस किस्म की बहसें। कोई और पॉइंट अगर बताना चाहिए। बिल्कुल, मैं उसकी बात कर रहा था कि एक इंसान को कोई फैसिलिटीज नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कि फ्री टेस्ट होते हैं। अव्वल तो अगर ये टेस्टों की तादाद बढ़ा दें, अगर ये 50-50 हजार टेस्ट रोज करेंगे तो 40-40 हजार रोज पॉजिटिव डिक्लेयर करेंगे। तो जिस हिसाब से वहां फैला है, ईद की शॉपिंग हुई है और अभी भी भीड़ चल रही है, रश चल रहा है, कोई किसको ख्याल नहीं है। मास्क लगाए हुए भी हैं तो उन्होंने ऐसे करके यहाँ पे पहना हुआ है, उसको मतलब उसको एक मजाक समझा हुआ है। अब जो अलमिया है वो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आदमी उधार कर्ज लेके सब करके जो गरीब लोग हैं वो टेस्ट कराते हैं तो एक जगह पॉजिटिव आता है, एक जगह नेगेटिव आता है। अब आप बताएं वो क्या करे, वो नेगेटिव को माने या पॉजिटिव को माने। वो जाके वो उससे खौफजदा हो गए लोग कि हमें है क्या, बास को सिम्टम्स नहीं है, उनकी फैमिली को हो गया, तो वो टेस्ट करा कर आए, आपने उनको नेगेटिव कर दिया, उसके बाद उनकी फैमिली को हो गया। मेरे खुद दोस्त हैं, उनकी वालिदा को हो गया, हालांकि उनके घर वालों के टेस्ट हुए थे, वो क्लियर थे और यकीनन वो टेस्ट गलत थे, इस वजह से वो कैच हो गया। अब आप बताएं कि इसमें हुकूमत नजर कहां आ रही है, अवाम कहां जाए। बिल्कुल सही। एक कानून ठीक है, हमारे यहाँ मजाज ऐसा है, गफलत है, लापरवाही है, ठीक है, लेकिन कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि ऊपर जो एक रेवड़ के ऊपर एक आपको चराने वाला बैठा होगा, या हमने जो हुक्मरान या एमएनए एमपीए जो मुंतखब किए हैं वो यही कह के कहते थे ना, हमें मुझे वोट दो, मैं आपकी सारे जो मामलात हैं उसको बेहतर तौर पे हल करने की कोशिश करूंगा। तो हमसे बेहतर जो लोग हैं उनका भी ये काम है कि कानून तो उन्होंने बना दिए, उस पे अमल दरामद कैसे करना है, सारे इख्तियारात उनके पास हैं। अब ये सुना जा रहा है कि जी जो बेरोजगारी है, भूख है, ये ज्यादा वहां पर मसला है बजाय कि ये कोरोना वायरस है। तो ये नहीं, अब ये कहना कि सख्ती करेंगे। जी हाँ, तो अब क्या सख्ती करेंगी जब खुदा न खास्ता जो पानी सर से गुजर जाएगा। इसी पे करते हैं बात, आप कॉल ले लें आप। मौला अली मदद जी, इश्तियाक भट्ट साहब, शुक्रिया जी। मूसी भाई को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम और ये अली अस्सलाम मदद जी। फारूक भाई अब मुझे आप बताएं, आप स्टूडियो में कब वापस आएंगे फारूक भाई? बस हम 15 दिन और देखते हैं क्या ये लॉकडाउन जो ईज हुआ है। पहले तो एक दुआ है कि पाक परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके से जितने भी इंसानियत बीमार है, पाक परवरदिगार को मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके से तो तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जितनी भी वबाएं इस दुनिया में है अल्लाह पाक उनको महफूज रखे। मौत बरहक है, खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, और अल्लाह पाक हमें ये तौफीक दे दे कि हमसे अहले बैत राजी हो जाएं तो हम उनकी बारगाह में हाजिर हो जाएं, बस यही दुआ है। तो मुर्शी भाई एक बात आपने की थी, मैं भी थोड़ी सी शेयर कर लूं जी। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दुश्मन खुद आपके सामने दुनिया पे बता देंगे हमने हक गसत किया था, हम लकड़ियां लेके गए थे, हमने घर जलाया था, नाउज़ुबिल्लाह हमने बीवी को झूठा कहा था, ये खुद कहेंगे इंशाअल्लाह पंतने पाक के सदके से ये वक्त आ गया है, और ये खुद खड़े होके कहेंगे कि हमने नाउज़ुबिल्लाह बीवी पाक को ये बात कही थी। बीबी कल भी सच्ची थी, बीबी आज भी सच्ची है, बीबी रोज़े महशर भी सच्ची है। तो फारूक भाई आप दोनों भाइयों से छोटी सी गुजारिश भी है, उसी भाई से भी और आपसे भी, मेरी हेल्प कीजिएगा जनाब। मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ, आप दो भाई हैं मेरे बड़े, जरूर, कि अगर कोई बंदा टीवी पे आके इल्जाम लगा दे कि आपने ये किया, एक बार इल्जाम लगाया खामोश हो गए, दूसरी बार नेशनल टीवी पे आके इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आप ये करते, अगर उस बंदे के पास, मैं आपकी बात दोनों की नहीं कर रहा, उस बंदे के पास अगर इस बात का प्रूफ नहीं है तो वो टीवी नेशनल पे ये इल्जाम क्यों लगाता है कि आप ये करते हैं? अगर उसके पास मेरी बात वो सुन रहा है या पहुंचेगी कभी, अगर उसके पास प्रूफ है वो लाएगा तो मैं छोड़ूंगा उसकी जान, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने 2 दफा मुझ पे इल्जाम लगाया, आप मेरे भाई हैं, उलमा इकराम का मैं एहतराम करता हूँ। कोई बंदा 10 साल से अहले बैत टीवी या कोई दूसरा हमारा टीवी चैनल है, उसके ऊपर मोहम्मद इश्तियाक भट्ट ने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई, किसी को कोई तकलीफ दी, किसी के मजहब मसलक दीन के बारे में बात की, तो इश्तियाक भट्ट का गिरबान हाजिर है। लेकिन टीवी पे आके किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ये किसी का कोई हक नहीं बनता। आप चाहे वजीर आजम हो
या आप बादशाह हो या आप कोई इदारे से मुंसलिक हो, मैं किसी को नहीं मानता। इंसानियत का एहतराम करना ये मेरी अहले बैत ने हमें सिखाया है। जिस दर पे मैं आया हूँ, आपको मोती भाई, आपको सारे शियों को पता है कि मोहम्मद इश्तियाक भट्ट पहले सुन्नत छोड़ के किया हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये दरे ज़हरा का सदका है। ना मैं मौत से डरता हूँ, ना मैं किसी और चीज से डरता हूँ। हाँ, अगर किसी की कोई भी लगारी हो तो मैं हाजिर हूँ। जहाँ भी मुझे कहा जाए टीवी पे आके ये इल्जाम लगाना, खुदारा आप थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। आप बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े, हमसे भी बहुत बड़े, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा कि बात क्या ना हो। बेशक मैं छोटा हूँ, अगर ये सच है इसमें तो फिर बात करें, अगर नहीं सच तो खुदारा खुदा का खौफ करो। उसी भाई मेरी बात अगर किसी को भी कोई भी सुन रहा है, पूरी जरूरत में माफी आप भाइयों से चाहता हूँ। मेरा दिल दुख रहा है इसलिए मैंने बात की, लेकिन एक बार फिर मोहम्मद और आले मोहम्मद के हर दुश्मन पे लानत है। इंशाअल्लाह वो मंजर यहाँ पे अनकरीब आने वाले हैं जिन्होंने जज़ाकल्लाह इश्तियाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत आप हमारे मोअज़्ज़ज़ स्कॉलर हैं। और क्योंकि बैकग्राउंड का नहीं पता किसने इल्जाम लगा दिया आप पे या क्या इल्जाम है, तो मुसीब भाई आप इस पर अगर आप मेरे ख्याल में पता है आपको? नहीं, मेरे ख्याल में इश्तियाक, मेरा ख्याल नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैं भी ला इल्म हूं, मगर इतना जरूर जानता हूँ इश्तियाक भट्ट साहब अकेले काफी हैं। और बहुत प्यारे, और वो वाकई हर जैसे देखे ना कि कोई फिरका है, दलील से कोई किसी जगह का शहरी है, जैसे अब वो कश्मीर से मुतालिक एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपने अकीदे से मुतालिक वो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो हर बंदा आजाद है अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी नजरिया रखे। तो इसमें और वो भी जो कश्मीर के मुतालिक बात करते हैं वो गलत नहीं करते हैं, वो कश्मीर के हैं, वो कश्मीर की सियासत को अंदर से जानते हैं। वो जो कश्मीरियों की आवाज है वो अपनी आवाज पर जब हम प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं और कहते हैं कि अब अपनी आवाज जो है एक महज़ब अंदाज में आप बयान कर सकते हैं, तो वो उसका पूरा हक है उनका, और वो ये करते हैं। से लगे हुए ना लोग के इसका क्या सोल्यूशन हो, तो हर कोई सोल्यूशन, कोई कहेगा इस तरह हो, कोई कहेगा इस तरह हो, तो जिस अंदाज से भी कोई किसी की सोच है तो उसको मुकद्दम रहना चाहिए, रखना चाहिए। एक और कॉलर है, फिर कुछ और इश्यूज और खास तौर पे चले। हुकूमत तो जो कर रही है, मीडिया ने तो कह दिया कि लड़ना, ये क्या कहते हैं, डरना नहीं लड़ना है, और हाथ धोएं। मजीद क्या करें, क्योंकि डॉक्टर्स भी बैठ बैठ के पैनल्स में वो शामिल हो गए, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब हमारी आवाम के लिए क्या मजीद उनको थोड़ा सा तंबीह के लिए या वार्निंग के लिए मीडिया किरदार अदा करे, तो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ लोग, आज मैं सुन रहा था कल से, ये 2-3 दिन से जब से ये असेंबली का इजलास या जब नैप में बुलाया था, जो वो पहलवान जो फूलों की बारिश इनके ऊपर हो रही थी, जैसे कुश्ती के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो पूरा हजूम साथ लेके जा रहे हैं। और कराची में एक जगह मंगू पीर का मैं देखने मिला, हजारों की तादाद में लोग, पुलिस वाला, डीएसपी, एसपी वगैरह अंदर खड़े हुए हैं। ठीक है, मास्क के ये सारे, ठीक है। कराची का तो बता रहा हूँ, लाहौर का जब वो नैब के गए, वो फूल शावर कर रहे हैं, जैसे हम देखते छोटे होते जब कुश्ती होती थी ना, ये बोल रहे अच्छे पहलवान की, ये हमारे बिल्कुल नहीं, यानी फतह करके आए, वो बहुत बड़ी चीज। तो ये जो पहलवान लेके जाते हैं और कहते हैं केस करेंगे हम इमरान खान के ऊपर, अगर कोरोना जिनको हो गया इनको, हाँ, तो ये कोरोना तो खुद करवाते हैं, लोगों को भी करते हैं और अपने आप को करवाते हैं। जब ऐसे जाते हैं बगैर मास्क के पहलवानों को अपनी कुश्ती करवाने, ठीक है, तो बाद में कहते हैं इमरान खान के ऊपर करेंगे। आज लॉकडाउन शुरू हो गया है, कल से आज शाम से सही है, लाहौर में, शादरा, कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे ये बंद रोड, इसके साथ शफीकाबाद, ये लाहौर का एरिया, ठीक है। उन्होंने ये एरिया जो ना, उन्होंने, अल्लाह बेहतर करे अहमद साहब, अल्लाह बेहतर करे। और क्योंकि मुसीब भाई ने जाना है थोड़ी मिनटों में, तो मैं चाहूंगा मीडिया से मुतालिक भी उनकी राय, और फिर द फोकस में वो इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम लाएंगे कल। मीडिया क्या मजीद, अब मुझे तो लग रहा है कि जो एक फाल किरदार कर सकता था मीडिया, हर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, पैनल्स में अब डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं, सियासतदान भी होते हैं, मुख्तलिफ आरा के लोग होते हैं, या मजीद इसमें सख्त किया जाए मामला। जी नहीं, देखिए, जो ने इसके अंदर किरदार अदा किया और मीडिया से इस गिराफ को लेके चल रहा था और बार बार
ہمارے معزز جو بڑے اینکرز ہیں، ہمارے جو بڑے دانشور ہیں، جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کریں گے. انہوں نے پاکستانی عوام کو آگاہ کیا، کرتے رہے. انہوں نے اپنا پورا جو صحافتی فرائض ہیں ان کو بخوبی انجام دیا، بتاتے رہے. وہ اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ان کی جو حدود تھی وہ اس تک انہوں نے کام کیا ہے. اب رہ گئی بات یہ تمام چیزوں کی کہ اب عوام کی باری ہے، اور عوام کو دیکھنا چاہیے ان کے آس پڑوس میں، برابر میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے دوستوں احبابوں میں لوگ تیزی کے ساتھ مر رہے ہیں. اگر وہ اس بات کو پھر بھی یہ ضد کرتے ہیں کہ یہ کرونا نہیں ہے، اسپتال والوں نے مار ڈالا، تو بھائی پھر بھی تو آپ کی مزید ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ پھر جو ہے اور احتیاط کریں. آپ چھوٹی سے چھوٹی بیماری میں بھی جو ہے وہ کسی کے ہتھے نہ چڑھیں. تو احتیاط کرنا ہے نا، کہ مطلب جب ہم، اور دوسری بات جیسے آپ نے کی کہ لڑنا ہے کرونا سے، آپ کسی بھی چیز سے لڑتے جب ہیں جب آپ ایک پوری قوم بنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پیج پر ہوتے ہیں، آپ کے اندر چور نہیں ہوتے، آپ کے اندر مفاد پرست نہیں ہوتے، آپ کے اندر جو ہے وہ ایک جو اسٹاکسٹ جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر ایک انجیکشن کی ڈیمانڈ ہے تو اس کو غائب کر دیا گیا، کسی چیز کی پیٹرول غائب ہو گیا، کبھی آٹا غائب ہو گیا، کبھی چینی غائب ہو گئی. جب ہمیں قومی نہیں ہے تو لڑیں گے کیا؟ ہمیں تو احتیاط کرنی ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں. اور اس میں اپنی بات ختم کروں گا اور اجازت چاہوں گا کہ جو اس میں سب سے بہترین جو اس کے اوپر بات ہوئی، جو تشیع کی طرف سے جو ہمارے مرجوں کا ایک فتویٰ آیا سامنے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص جو احتیاط نہیں کرتا، دوسروں کو پھیلا رہا ہے، وہ قاتل ہے. تو اگر ایک انسان کو جواب دینا ہے، ایک دن جانا ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کو وہ اس طرح سے لے. اگر آپ شیعہ ہیں تو فالو کرتے ہیں تو آپ مانیں گے، اگر آپ شیعہ نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. کہ جو انسان احتیاط نہیں کر رہا وہ اس کو مذاق نہ سمجھے. وہ پتہ نہیں کتنے انسانوں کا قاتل پروردگار کی بارگاہ میں قرار پائے گا، کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ اجڑ گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے. اس چیز کو خدا را سمجھیں اور خود بھی احتیاط کریں اور دوسروں کو بھی مرنے سے بچائیں. تو یہ تمام چیزیں اس کو اس طرح سے لے لیں. کرونا ہے یا نہیں ہے اس پر بحث، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو بند کر دیا. اس بات کو احتیاط کریں کہ آپ سے کوئی نہ مر جائے، اور اسی طرح آپ بھی دوسروں سے محفوظ رہیں. ان تمام چیزوں کو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں ہندوستان اور پاکستان کے اندر اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، کھیلا جا رہا ہے. نہ حکومتیں سنجیدہ ہیں، نہ سیاسی پارٹیاں سنجیدہ ہیں، اور لوگ مر رہے ہیں. عجیب ہے یہ. بالکل بالکل صحیح. اور اس کو خطرہ جانے یہ کیسے آیا، کس نے بنایا، یہ بحث بعد میں کرتے رہیں گے. ابھی تو چاند پہ جانے کی بحث جاری ہے کہ وہ کوئی گیا تھا کہ نہیں گیا تھا، وہ چلتی رہے گی. لیکن فی الحال یہ خطرہ ہے، اس کو خطرہ ہی جانے، اور اس سے کوئی جو ہے وہ بچنا کیسے ہے، اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. موسی بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ شامل ہوئے، اور انشاءاللہ ہم تھوڑا پروگرام 7 بجے تک لے کے چلیں گے. اور موسی بھائی آپ کو ناظرین کل ان کا پروگرام دا فوکس ہوگا، اس میں ان سے 4:15 بجے تک ملاقات کیجیے گا. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. کچھ ایشوز اور پاکستان کے جو صورتحال ہے واقعی بہت زیادہ تشویشناک، اور اب جو ماہرین بتا رہے ہیں کہ جولائی اگست میں بہت زیادہ پیک پر یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور وہاں پہ تو کوئی ایسی سہولیات بھی نہیں ہے جو یہاں پر سہولیات ہونے کے باوجود جو بے بسی تھی وہ اب سب نے آنکھوں سے دیکھی ہے. تو کیا ہوگا وہاں پہ، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ حالات خراب ہوں، لوگوں کو خود اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. جی علی بھائی، بہت شکریہ میری کال لینے کے لیے. تھینک یو سر. پہلے تو جہاں تک اسلامک کوئی بھی مسئلہ ہو، اچھی بات ہے، اس کے اوپر کوئی ظلم کی ہونی چاہیے. جی کہ کوئی بھی غیر اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو سب مسلمانوں کو بیٹھ کر کوئی ظلم کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. دوسری جو بات قرآن کی کے بارے میں محمود قریشی صاحب نے کی ہے، یونیورسٹی میں ہم اس کو ترجمہ پڑھائیں گے. میرے خیال میں قرآن اصل میں ایک تعلیم اور تربیت جو ہے نا وہ آدمی کی بچپن سے ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ 18 سال کے بعد اب یونیورسٹی میں تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے، تب تک جو بندے کے جو بہت تبدیلی آ جاتی ہے. تو یہ اصل قرآن تو اصل وہ گائیڈنس ہے نا، تربیت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طور طریقہ ہے اسلام کا، ساری تربیت ہے اس سے. وہ اصل میں ارلی ایج سے اس کو پڑھانا چاہیے. ترجمہ یہ تو بہت لیٹ ہے کہ یونیورسٹی سے جا کر پڑھائیں گے، اس کو بلکہ کنٹینیو کریں گے یونیورسٹی کے اندر. اس کو اور بڑی سطح پر اس کے اوپر لیکچر وغیرہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کے اوپر اس کو فائدہ ہو. اس کے بعد جو کورونا کے اوپر ہے وہ میرے خیال میں یہ جب تک یہ بیان بازی بند نہیں نہ ہوگی ادھر ادھر سے، تب تک اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا.
ये इधर से बयानबाजी उधर से बयानबाजी जो है ना प्रेस कम से ये बंद होनी चाहिए ताकि जो चीज पैदा हो ताकि मुल्क के अंदर सब लोग तेज पारा के ऊपर सोचे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और तीसरा चौथी बात इसकी ये है कि इमरान खान तो तब कामयाब होगा जब तक उसकी हुकूमत की हिट नजर आएगी। अभी तो कभी ये आटा माफिया, कभी चीनी माफिया, कभी पेट्रोल वाले अपना सिलसिला शुरू कर देते। तो जब तक इदारे जो है इनसे गन निकाला नहीं जाएगा, इदारे बख्तियार नहीं होंगे और इदारे सही तरह से इमरान खान का साथ नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और एक पुलिस को जो है ना उसको सही उसको ट्रेनिंग करें और पुलिस को सही तरह से एम्पावर करें, उनको जो कुछ चाहिए वो दें। तो बल्कि उनको ये जो एक्ट कार्ड है, ये स्टेट इंसाफ कार्ड, ये चीज से आर्मी वालों के पास जो है ना वो आर्मी के हॉस्पिटल है, ठीक है, चीजें जो करने की बेहतर करने के लिए इमरान खान को इन चीजों को असल इन चीजों की तरफ आना पड़ेगा। अभी 22 महीने हुए, अभी इसे सिखाने का वक्त काफी आगे हो गया। इन चीजों की तरफ गौर करनी पड़ेगी। जैसे 3 मई को ऊपर फैसला हुआ, बहुत अच्छा हो रहा है, इसी तरह बाकी चीजों को इन चीजों की तरफ देखना पड़ेगा। सही है जी, बहुत शुक्रिया अली साहब, बर्मिंघम साहब शामिल हुए। और बिल्कुल सही जी, इदारों को काम करना चाहिए। असल में कुछ स्टेप्स होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, या उसके समरात जो हैं वो यकीनन 2, 4, 10 सालों के बाद वो मिलते हैं। यानी फर्ज किया किसी ने कहना है कि अब मैं छांव में बैठूंगा और आज वो दरख्त लगाए और कल उससे उम्मीद लगा ले, तो ये बहुत टू अर्ली होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस वक्त जरूरत है शॉर्ट टर्म या बहुत ही सडन या इमरजेंसी के तौर पे उनको स्टेप्स उठाने की जरूरत है। इसमें चाहे हुकूमत है, चाहे अवाम है, या चाहे हमारे जो भी इदारे हैं, तो उनको ये पॉलिसी जो है उन पर जरूर गौर करना पड़ेगा। सरेनो देखना होगा कि हालात क्या चल रहे हैं और हमने इस सिनारियो में, मौजूदा सिचुएशन में कैसे स्टेप उठाने हैं, कैसे अवाम की भलाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हुई, आप दोबारा कॉल मिला सकते हैं। और प्रोग्राम जारी है इवनिंग आवर में 2 टॉक सिलसिला गुफ्तगू का। कुछ इश्यूज जो हमने इस पर बात की, एक तो नैब के केसेस के मामला चल रहे हैं, कुछ इस्लामाबाद में जो जस्टिस फायजीसा के खिलाफ जो रेफरेंस था उस पर बात हो रही थी। मैं कॉल ले लूं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। यासिर साहब क्या फरमाएंगे सर? हाँ, फारूक भाई, अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जो बड़े जो कालों की वजह से जो कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सोचे कि सिर्फ कहाँ गया होगा, क्यों कोरोना हो रहा है? उनको भी हो चुका होगा या हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा? इतने ज्यादा डेली हो रहा है। इंग्लैंड में भी हो रहा है, लंदन में, इनके मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में देखो तो जब और काले को मार दिया अमेरिका में, अटलांटा में। ठीक है, ठीक है। तो उनको क्यों नहीं वो चीज का क्यों नहीं है जो सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं और हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि जो अस्पताल में गया, ये तो इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो गया बेचारा, तो उसको आगे भेज दिया उन्होंने। सही है, सही है। वो बेहतियाती कर रहे हैं ना जी, जो भी कर रहे हैं, जो भी रश ऐसे लगा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आया कि जो एहतजाज हो रहा है। और अब ये खैर हमें जो टर्म यूज करते हैं, यकीनन हम कोई तासुबाना ये टर्म नहीं है, जैसे काला कह दिया, गोरा कह दिया, फलां जी गोरों के मुल्क में। तो पहले शायद ये कुछ साल पहले, बल्कि कुछ महीने पहले, ये हम क्योंकि दिल से कोई, जैसे हमारे सरफराज विकेट कीपर ने एक जुमला कह दिया था, वो उनके स्टंप मैक्स में आ गया था कि वो काले तो कौन सी दुआ लेके आया अपनी माँ से। तो ये काला वर्ड, काला यूज बाजों का तो हम बच्चों से प्यार से भी कह देते हो काले या गोरे। लेकिन इन दिनों क्योंकि हम इस किस्म के जो तासुबात हैं या इन चीजों पे ज्यादा गौर होता है, तंजीमों का भी या जो वाचडॉग बैठे होते हैं उनका भी, तो मैं चाहूंगा हमारे जो नाजरीन जब भी आए तो अब वो पुरानी जो टर्म्स हैं या वो जो मुख्तलिफ जो जुमले हैं इस किस्म के जो पकड़ में आ सकते हैं, तो वो आप एहतियात कीजिए। मुझे यकीन है कि हम सब इससे वाकई हमारा कोई जहन से वो या दिल से ये नहीं होता कि हम तासुबाना किसी को कह रहे हैं काला या गोरा। लेकिन फिर भी अब जैसे कोरोना के मामले में हमें एहतियात की जरूरत है। हमने कभी नहीं सुना था कि ऐसा डिस्टेंस और ऐसी बीमारी आएगी। तो जमाने में अब इस किस्म के जो अलकाबात हैं या निक नेम्स हैं या किसी को पुकारने के जो तरीकाकार हैं, तो इसमें थोड़ा सा हमें कॉन्शियस होना चाहिए, होना पड़ेगा, क्योंकि ये अब
गलत जिसे कहते हैं ना उस चीज में आते हैं, तो इसमें मैं चाहूंगा कि एहतियाती करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर को जनाब इर्तिजा हसनैन बात कर रहा हूँ कराची से। जी इर्तिजा हुसैन साहब, माशाल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इर्तिजा साहब। आप बताइए क्या सूरत हाल कराची में? बस एक तो आपकी खैरियत मालूम करनी थी, और दूसरा ये कि लास्ट टाइम जो आपके नंबर स्क्रीन पे चल रहे थे तो मैं बहुत ट्राई कर रहा था मगर लग नहीं रहे थे, कुछ मसला था क्या? लाइव कॉल नंबर जो थे? जी 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 जी। अच्छा, बाज़ औक़ात होता है, जैसे अभी कोई कॉलर होते तो आपका आज भी कॉल लगना मुश्किल होता, लेकिन बाज़ औक़ात बिजी होते हैं और हम घरों से ही कर रहे हैं, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि आपकी कॉल्स होल्ड कर सके। आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मौला आपका साया हम पे सलामत हम नौकर भाई, हम नौकर हैं आपके। आबिद बिन ग्रामी साहब को मेरा खुसूसी जब भी मौका मेरे सलाम कहिएगा। जज़ाकल्लाह। और कराची में जो कोरोना की सूरत हाल है इसके लिए दुआ कीजिएगा कि हमारे मुल्क में कोरोना का बल्कि पूरी दुनिया से खत्म हो, इंशाल्लाह। दुआओं की जरूरत है बस। तो हसनैन भाई, थोड़ा हमें ग्राउंड रियलिटी जो अब बताएं, हम तो दूर बैठे ना, कि एक तो लोग कितना सीरियस हुए हैं अभी कि इसको खतरा जान रहे हैं, एहतियात करने की तरफ राग़िब हुए थोड़ा बहुत। इतना ही है कि लोग, हमारे जो लोग हैं ना, अव्वल तो पहले तो काफी 100 में से 80% लोग जो है इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना कुछ है। अभी तक, आज तक ये सूरत हाल है कि अभी भी 80% नहीं मान रहे। जी नहीं मान रहे, बस वो कह रहे हैं ये ऐसी अफवाह है, फलाना था मूवी देखी है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के ऊपर कुछ साजिश चली जा रही है। ओहो, अच्छा। ये इस थिंकिंग की चक्कर में ये है कि अल्लाह ताला कोई मौजज़ा करे कि खत्म हो। ये कि बहुत ज्यादा हालात खराब है, खासतौर पर कराची की सारी मार्केटें, मेरी जहाँ रही थे सब मार्केटें, दुकानें सब खुली हुई है, कोई लॉकडाउन नहीं है कि 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। और इतना लोग बाहर घूम रहे हैं बच्चों के साथ, सबके साथ, कोई सेफ्टी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे भाई। बहुत शुक्रिया, आपने कराची से कॉल की, पजीराई की, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जनाब बिलग्रामी साहब को भी आपका सलाम मोहब्बत पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बड़ी फिक्र की बात, जैसे हमारे भाई ने बताया, चले 80% ना सही 60-70% या आधे लोग भी अगर इसमें अभी तक इसको सीरियस नहीं ले रहे, तो ये बहुत बड़ी सीरियस बात है और इसको लेना चाहिए। और आप अब तो फुटेजेस मौजूद हैं, अगर किसी मरीज को उस कैफियत में अगर आप देख लेंगे ना, हमारे अभी शाहीन भट्ट साहब जो अलील हुए थे मार्च में, या अभी असलम हाशिम साहब की जो सिचुएशन थी, कितने हफ्ते वो वेंटिलेटर पे रहे, और जो जिस तरह से फिर उसको कोरोना को उन्होंने शिकस्त दी है, तो वो सिचुएशन जरा हम देख रहे हैं और बंदा बेबस हो जाता है। और उसका कोई इलाज नहीं है ये, और उसकी सहूलियात जब आपके यहाँ, जब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स की कमी, ट्रंप हो, बोरिस जॉनसन हो, तो हम इंडिया पाकिस्तान ने तो, हमारे यहाँ तो वो पैसे लगा ही नहीं कि अस्पतालों में घोड़े गधे बंधे होते हैं, या जो डॉक्टर्स हैं, या जिस तरह से सरकारी अस्पतालों का वहां पे हम मंजर देखते हैं। तो इस पर तो अब अवाम को सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए, क्योंकि वहां पर अरूज जा रहा है। सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने न्यूजीलैंड की है कि उन्होंने एक मरीज देखा और लॉकडाउन कर दिया, और वहां पर जीरो है कई दिनों से। पेशेंट जो है अभी नए इंटर हो रहे हैं, कोई भी उसमें खतरे की वहां पे बात नहीं रही। तो अब अवाम जो है, खुदारा थोड़ा इस पे गौर करें, क्योंकि 2-3 महीने पहले ये सिचुएशन जो यहाँ पर थी, इटली, स्पेन, अमेरिका, तो अब सिचुएशन वहां पे बढ़ती चली जा रही है, और अवाम को सीरियस लेना पड़ेगा। और अगर फिलहाल अभी भी सीरियस नहीं हो रहे, तो जहां दूसरे क्लिप्स आप देखते हैं सोशल मीडिया पे और चीजें आप देखते हैं, तो एक क्लिप जरा उस मरीज का देखिए जो इस कोरोना वायरस की वजह से इफेक्टेड है, और वो मुब्तला है, सांस की उसमें तकलीफ है, किस मुसीबत से वो गुजर रहा है। तो खुदा इसको जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अली मदद, मौला अली मदद शाह साहब, बहुत शुक्रिया मौला अली मदद साहब। अब जब याद आए, बहुत याद आए अनवर शाह साहब, आपका हमारा एक रूहानी सिलसिला है। क्या बात है, जो ना खत्म होने वाला नहीं फरूक भाई। नहीं नहीं नहीं, मौला आपको सलामत रखे शाह साहब। जहाँ भी रहे, जिधर भी रहे, हाँ, ये जो हमारी वो जो रूहानी एक हम हमारा होता है ना गुफ्तगू, और हम जो मौलाए कायनात का जिक्र करते हैं, माशाल्लाह, आपकी मोहब्बत। वो
आपको भूल नहीं पड़ता। देखें शाह साहब, आपने अभी हेलो किया तो मैंने आपको पहचान लिया, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? जी 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 फरूक हम भी नहीं साहब, भूल ये सकते। हालात जो अब तो बदलते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं अकीदत के फूल में ट्राई किया था इस वीकेंड सैटरडे को, पर अच्छा। आप हाजिर नहीं हो। हाँ, मैं उस प्रोग्राम में नहीं था टीवी से, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में सही आपके अशार भी सुनेंगे, आपकी सारी वो नए मोहब्बत। बोर्ड लिखा है, वो तो आपको जो है ना मेडिसिन देंगे मौला कायल क्या आप बात, इंशाअल्लाह ताला। हर लम्हा इसी में गुजरता है। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। जन्नतुल बकी के हवाले से बात करूंगा जी कि ये हक पर आवाज बुलंद, जब जब हक पे आवाज बुलंद होगी, जदीदियत भी खुलकर फरूखबाज हो भाई साहब सामने आएगी। सही बात है, सही और बात। ये बड़ी कंट्रोवर्सी है, आप देख रहे हैं मीडिया पे हो रहे हैं, लोग ऐसी ऐसी जो है ना बातें कर रहे हैं गिरी हुई, ये यजीदियत है। तो सारे यजीदियत एक टोला है सामने जो आएगी। हमें कहता है कि हम कामयाब ना हो। सही बात है सर। शाह साहब बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। और इस वीकेंड को इंशाल्लाह मौला अली मदद। बहुत मेहरबानी। अनवर शाह साहब नॉर्वे से, बहुत प्यारे बुजुर्ग हैं और मुहिब हैं माशाल्लाह अहले बैत की। और जैसे आपने फरमाया मुनाफिकत, और आखिरी दौर में यही सुना है ना उलमा कराम से कि मासूम के फरमान के मुताबिक मुनाफिकत करना आखिरी दौर में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो अंदर हसद बुग़्ज़ है, जो भी एक गलतकारी है, वो किसी ना किसी अंदाज से वो सामने आ ही जाएगी और आपका चेहरा बेनकाब हो ही जाएगा, चाहे जितना भी लबादा आप ओढ़ के रखें। तो इसमें शाह साहब की कॉल के बाद एक और कॉलर हैं, कुछ और इश्यूज रहते हैं, लेकिन कॉल पहले। अस्सलाम वालेकुम। तो भैया मैं दोबारा बोल रहा हूँ शफीक, जी आपको जी, एक बात बोलना है हमारे, वेरी इंपॉर्टेंट। या प्लीज। जो हौज में गया है ना, मक्का से किंग फहद को बोला मैं सुन्नी मुसलमान, मदीना में जाकर मिला सब सिया मुसलमान, सब कहते हैं मदीना में सिया, और मक्का में जो सुन्नी मुसलमान है ना, किंग फहद शफीक भाई, आपकी कॉल हमें काटना पड़ती है क्योंकि आप शुरू तो सही होते हैं, लेकिन बाद में आप किधर गाड़ी को मोड़ देते हैं, तो आपको फिर रेड सिग्नल दिखाना पड़ता है। तो जब भी आप आए, आप टॉपिक से मुतालिक जो भी गुफ्तगू हो रही है, जो लोग बात कर रहे हैं, उसमें मजीद अपनी आप बात करें, तो फिर हम आपकी बात सुनेंगे भी। लेकिन अपनी इंडिविजुअल या किसी खास आप अपना एक नजरिया अगर लाना चाहते हैं तो फिर मुश्किल होगी, आपकी बात हम ऑन एयर नहीं कर सकेंगे। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फारूक साहब, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ठीक है कि आपने जो ये कहा कि अवाम खुद कुछ अफाजती तदबीर करे, ठीक है, तो ये तदबीर करनी चाहिए, अवाम को खुद करनी चाहिए। मैं व्हाट्सएप के जरिए भी कहता हूँ, अच्छी बात, ईमेल के जरिए भी कहता हूँ कि अच्छी अवाम बात, को खुद एहतियाती तदबीर करनी चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए। अवाम को खुद, हुकूमतें चंद लोग होते हैं, हुकूमतें गुजरा होते हैं, चंद लोग होते हैं, वो सारा कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह डॉक्टर्स भी सारा कुछ नहीं कर सकते जब तक अवाम खुद जो है ना एहतियाती तदबीर न करे। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ जो है ना। बहुत शुक्रिया सर आपके इत्तेफाक करने का, और इससे आगे बढ़ने की जरूरत है क्योंकि हम सब, और खासतौर पे इस वक्त भी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी इस वक्त बैठे हैं, चाहे यूके में जो लोग देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस पीक से गुजरे हैं। यहाँ पर अभी कहीं थोड़ा सा लॉकडाउन थोड़ा सा ईज किया गया है, बाद जगहों पे जैसे फ्रांस में हमारे भाई साहब कह रहे थे काफी सहूलियात। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने वहां पर जो बहन भाई अजीजों कार पाकिस्तान में, क्योंकि वो नहीं देख सकते, वो जिसे कहते हैं ना कि वो फील नहीं कर सकते कि क्या कितना बड़ा ये मुश्किल दौर से ये टाइम गुजरा है। तो अगर हम ये भी कोशिश करें कि अपने अजीजों कारब को भी बताएं कि भाई ये मामला सीरियस लें और इसको इजी ना लें, ताकि हफ्ते 2 हफ्ते अगर एहतियात करेंगे, हुकूमत चाहे कुछ भी कर रही है नहीं कर रही, तो उस पे ना रहें, खुद जो है वो आप एहतियात करें, अपनी सेहत की हिफाजत करें, घर वालों की करें, तो इंशाल्लाह इस आप भी उस पीक से गुजर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। तो कुछ इश्यूज जैसे हम इस पर बात करते रहेंगे, यकीनन ये वहां पर मामला काफी
अहमियत का हामिल हो चुका है और इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। हर टॉक शो में आज हम देख रहे थे पाकिस्तान में हुकूमती ओहदेदार के साथ साथ एक डॉक्टर भी है और वो इस तरह से आपको जो भी बात समझा रहा है उस पर जरूर कान धरें। मैं जो कुछ इश्यूज और भी हैं जिसमें डिप्रेशन के हवाले से हमने शुरू में बात की थी कि एक इंडियन अदाकार की जो खुदकुशी थी वो क्या मैसेज, क्या जो हमारे इर्द गिर्द जो भी खबरें होती हैं, जैसे पिछले दिनों जो हमारा ईद से पहले जो त्यारा पीएए का गिर गया, तो उस खबर से या उस साने से जो जिंदा बच जाने वाले जो लोग हैं, हमें क्या मैसेज जाता है? मैसेज यही जाता है कि भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप चंद मिनट पहले जो है वो देखें, लैंडिंग से पहले, बल्कि लैंड एक बार जहाज किया भी है, फिर एक मौत लिखी थी बहुत से मुसाफिरों की, सिर्फ 2 मुसाफिर उससे बच पाए, बाकी सब जो है वो शहीद हुए। तो इससे हम सब जो रहने वाले हैं, हम भी कहीं ना कहीं इस किस्म की खुदा न खास्ता हादसे से शिकार होने से पहले अपने आप को दुरुस्त कर लें, अपने मामलात जो हैं वो बेहतर कर लें। अगर खुदा के यहाँ हाजिरी हो गई तो हम क्या अमाल लेकर जाएंगे? और यही हिसाब ये जो कल एक एक्टर जो है जिन्होंने खुदकुशी की है, तो ठीक है वो उनकी खबर क्या वजूहत हो सकती है, लेकिन डिप्रेशन बहसियत मुसलमान बहसियत मोमिन जो है वो मायूसी को इसीलिए गुनाह करार दिया गया है, कुफर करार दिया गया है कि कोई भी हालत हो, कितने बड़े साने से, कितनी बड़ी मुश्किल से, कितनी बड़ी आपको ठेस लगी है, नुकसान पहुंचा है, जानी नुकसान है, माली है, कितनी बड़ी आजमाइश है, लेकिन आपने मायूस नहीं होना। और अब हमारे यहाँ जो मुहिबान अहले बैत हैं, इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत है कि दर अहले बैत की जो मोहब्बत है वो हमें याद दिलाती है कि हम अपने जनाजे भूल के भी वो जब वो मजलिस सुनते हैं, जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम किस खेत की मूली हैं या हम क्या हैं। जब इतनी इतनी बड़ी हस्तियों पे मुश्किलात या आजमाइशें आई हैं, तो ये चीज है डिप्रेशन से। ठीक है, एक डॉक्टरी नुक्ता निगाह भी इसकी इलाज मुआवजा भी है, क्योंकि बाद जैसे हमारे पूरे जिस्म के कोई ना कोई मसल पुल हो जाता है, मसल्स काम नहीं करते बहुत सी बीमारियों को, जैसे उसी तरह दिमाग के अंदर जो सलाहियत है आपको पॉजिटिव रखने की, वो भी बाज औकात वो मंदमिल या उसमें थोड़ी सी वो ताकत नहीं रहती। तो इसके लिए जो अद्वियात हैं और एंटी डिप्रेसेंट जो चीजें हैं, उसके लिए जरूर हमें अपने डॉक्टर जीपी से इससे राब्ता रखना चाहिए, ताकि उस आप कुएं में ना गिर जाएं, उस फेज में हॉलो में ना चले जाएं कि आप अपनी जान तक लेने के ख्याल करने लगें। तो इससे हमें बचना चाहिए। इस्लाम में तो इसलिए इसको हराम करार दिया गया है क्योंकि सबसे बड़ी अल्लाह ताला की जो रहमत है या जो एहसान है, नेमत है, वो आपकी जान है। तो जान देने वाला जब अल्लाह है तो हम कौन होते हैं कि इसको अपने हाथों से खत्म करने का जो एक इतना बड़ा गुनाह कर लें। तो ये सारी चीजों से हमें सबक लेना चाहिए, जो भी हम खबरें या जो इस किस्म के वाकयात को देखते हैं। कुरान पाक तर्जमे की जो हमारे भाई ने भी कॉल की, यकीनन ठीक है, जो एक आला सतही जो तालीम या क्लासेस हैं वो तो होता ही है, उसमें मजीद पढ़ाया जाए, लेकिन बचपने में जो आपके फीड कर दिया जाता है तो वो बहुत मुश्किल से निकलता है, क्योंकि हम तो उस चीज से गुजरे हैं कि बचपन में जो दीनियात इस्लामियात में पढ़ लिया तो उससे फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत बड़े बड़े जब दलाइल सामने आते हैं कि भाई जो पढ़ा था वो बिल्कुल हकायक से बिल्कुल मुतसादम था, उलट था, फिर कहीं जाके इंसान को वो भी अल्लाह ताला तौफीक दे तब कहीं, वरना उस भंवर से ही बंदा नहीं निकल सकता जो फीड आपको कर दिया जाता है बचपन से। तो जैसे भाई ने भी बताया कि ठीक है यूनिवर्सिटीज में कुरान तर्जुमे से पढ़ाना चाहिए, लेकिन बचपन में आप क्या तालीमात दे रहे हैं, आप किस सोच को आगे प्रमोट कर रहे हैं बच्चों में, इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। ब्लैक लाइव्स मैटर, जैसे अमेरिका के अटलांटा में एक और वाकया हुआ, एक बाशिंदे जो स्याफाम थे रेशर्ड ब्रुक्स को भी पुलिस ने कत्ल कर दिया। तो ये क्या है कि पुलिस की जो सोच है या जो भी ऐसे इदारे, अब हमारे यहाँ आज 15-17 को मॉडल टाउन वाकया हमारे जेनों से नहीं निकलता, जब पुलिस ने सीधे फायर कर दे, ना खवातीन देखी ना बच्चे देखे, वो क्या ला कानूनियत है, वो क्या हैवानियत है। इसकी एक वजह तो यही है कि जो हमारे यहाँ पुलिस के ऊपर जो लोग बैठे थे, जब ऐसे बड़े बड़े लोग इस किस्म की जो मुजरमाना तौर पे
लोगों को जिसे छूट दे दें कि फलां जो ग्रुप है या फलां जो तंजीम है हुकूमत में जो भी है, तो वो अगर आपके मुखालिफ है तो उसको तेग कर दें, उनका मलिया मेट कर दें। तो यही हिसाब हमारे यहाँ भी हुआ था 17 जून को 2014 जब मॉडल टाउन में वाकया हुआ, जो पिछले साल हमने देखा साहिवाल में जो बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया। तो ये जो माइंड सेट है, फौज एक हमारा रेंजर्स के एक रुकन ने एक नौजवान को कराची में कत्ल किया था कुछ साल पहले। तो इस किस्म के वाकयात भरे पड़े हैं कि कोई मरीज है, कोई बुजुर्ग है, उसको जो है वो धकीला जा रहा है, मारा जा रहा है। तो यही सोच, ये इसमें सिर्फ हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, अब अमेरिका में या बहुत से ऐसे बड़े ममालिक में रेसिज्म की इस किस्म की वारदातें वो इदारे वो लोग कर रहे हैं कि जिनका काम है इस किस्म की वारदातों से लोगों को बचाना। तो जब ऐसे इदारे खुद ऐसे कामों में मसरूफ होंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो इसमें जो वहां पर पहली तारीख चल रही थी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के बाद, तो अब एक और कत्ल हुआ, तो वहां पर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उन पुलिस वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और ये वजूहात यही हैं। और जैसे ये दोनों चीजें हैं ना कि बाज पुलिस वाले वो कहते हैं जी इतने वो, जैसे इस एटलांटा में जो कत्ल हुआ है वो शख्स जो है वो ड्राइव थ्रू में बैठ गया है और वो गाड़ी से नहीं उतरा, गाड़ी से जब उतार के उसका मंशियात का टेस्ट लिया गया तो वो मंशियात में गाड़ी चला रहा था। तो इस किस्म में जब नशावर अशिया वो इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर इस किस्म की ड्रग्स हैं, या जॉर्ज फ्लॉयड की बात कर रहे थे, $20 का वो जाली नोट वो इस्तेमाल कर रहा था, तो इस किस्म की ठीक है वो जराइम कर रहे होंगे, लेकिन फिर उसकी सजा कत्ल तो नहीं है। आप अपनी सजाओं को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बहुत ये भी देखा गया है कि वेस्ट में या अमेरिका में जो इस किस्म के मुजरम हैं वो जेलों में 2 महीने 4 महीने 6 महीने रह के वो जब बाहर आते हैं उनको पता होता है कि इस किस्म के कामों से कोई इतनी बड़ी उनको कोई सजा भी नहीं होगी। तो एक तो कानून साजी वहां पे होनी चाहिए, और दूसरा ये जो अनलिमिटेड या एक ऐसी अख्तियारात जो दे दिए गए हैं वहां पर फोर्सेस को, उस पर भी जरूर असर नो कोई नजरसानी होनी चाहिए, ताकि इंसान को इंसान समझा जाए, कोई रंग नस्ल या जबान या किसी जगह के शहरी के तौर पे उसकी इज्जत या बेइज्जती या जान की हिफाजत या जान लेना ये नहीं सोचना चाहिए। तो इस पर बात हुई है और टाइम 2 मिनट रह गए आज इस्लामाबाद में और नई दिल्ली में जो इंडिया हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है, और नई दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है, थोड़ी सी कशीदगी रही है। अब क्या बने है, अब कुछ अपडेट्स नहीं आई, क्योंकि बताया गया कि इस्लामाबाद में 2 इंडियन हाई कमीशन के मुलाजमीन का एक्सीडेंट हुआ, पाकिस्तानी शहरी उससे जख्मी हुआ, उनको तहवील में लिया गया उन मुलाजमीन को, और उसके जवाब में नई दिल्ली में भी मुआसरा किया गया पाकिस्तानी हाई कमीशन का। तो ये मामला अब किधर जाएगा, सफारती तौर पर इसको हल करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी इम्यूनिटी मिली होती है। सबसे मशहूर वाकया हमारा रेमंड डेविस का हुआ। इन दिनों गैर मुल्की जो खातून सिंथिया रिची, उनका भी केस चल रहा है। FIA के को हुक्म दिया गया है आज इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने कि वो उनके खिलाफ मुकदमा करें। तो जो उन्होंने इल्जामात लगाए थे साबिक वजीर आजम, साबिक वजीर दाखिला, तो अब देखते हैं वो कहाँ तफ्तीश पहुंचेगी। एक आखिरी कॉल लेके फिर बिल्कुल वाइंड अप की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। दोबारा मादर के साथ कोई बात नहीं, बात करूंगा, फिर आप अपना कंटिन्यू करें। जी जी। देखिए, जो कुरान के बारे में मैंने पहले भी बात की है, जो वो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने जो बात की है, मैं चाहता हूँ कि आवाम की और आप इसके ऊपर एक प्रोग्राम करें ताकि इसको अगली जिसमें जो है ना तर्जमे के साथ पढ़ाया जाए। और जैसे अहमद भाई हैं और बहुत सारे हमारे आपके कॉलर हैं, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर इसके ऊपर बात करें ताकि वो जो है ना आने जितने बड़े अहदेदार हैं हुकूमत है उन तक ये बात पहुंचे। इसको अगली एक चीज पढ़ाना चाहिए। ठीक है। यूनिवर्सिटी तक तो बहुत लेट हो जाता है। आज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अली भाई, बहुत मेहरबानी, आपका पॉइंट आया है, इस पर इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। और नाज़रीन, आज का इवनिंग आवर खत्म हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया जिन ख्वातीन हज़रात ने कॉल्स की, देखा। और सबसे बड़ी जो अहम बात यही होनी चाहिए, हम भी आपको बार बार, बल्कि मीडिया बार बार याद दिला रहा है, बहुत से इश्तहारात पाकिस्तानी अखबारात में थे, किस तरह से आपने अपने आप को बचाना है, मास्क पहन के रखना है, खासतौर पर पाकिस्तान में। तो इस सारी चीजों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी सेहत बहुत ज्यादा मैटर करती है।
हुकूमत के इकदामात, उन पे तनकीद, उनकी कमी बेशी, वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले खुदा न खास्ता जो नुकसान होगा वो किसी वजीर, मशीर, वजीर आजम, डॉक्टर, इंजीनियर, उसका नहीं होगा। अगर आपने बेहतियाती की तो आप खुद पहले अपना नुकसान करेंगे और अपने घर वालों का नुकसान करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिए, तो उसके बाद फिर देखा जाएगा, तनकीदें भी होती रहेंगी। मेरी आपकी मुलाकात अब कल के निगार में तकरीबन 5:30 बजे यूके टाइम होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।